اس کے بعد مرزا علیہ السلام کو سچا سمجھا اور سچا مانا. جی جھوٹے مدعی نبوت پر لاکھ لعنت ہو. آپ ٹائم بائی کر رہے ہیں یا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے, اس میں نہ آپ میرے جواب کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ صحیح. اگر صحیح کہیں گے تو عامر حق صحیح ہو جائے گا, اگر غلط کہیں گے تو مرزا صاحب غلط ہو جائے گا. آہا مشکل بہت پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے. بات کیجئے گا عامر حق سے ذرا دیکھ بھال کر. جی جناب دن چلے گئے نا, وچ نہیں بولنا. تو آپ کیا کہ میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا, پھر وچ نہیں بولنا ہوں. 2 دن پہلوں تسی 1.5 گھنٹہ مینوں گالاں کڈیاں نے, لیکن وہ کسی اور آئی ڈی تے کڈیاں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, چھڈو اس گل. کسی اور آئی ڈی تو کڈیاں, یعنی کہ میری کوئی اور آئی ڈی سی تے او دے اوتے تسی مینوں 1.5 گھنٹہ گالاں کڈیاں, لیکن چھڈ دیو اس گل نوں. خیر اچھا مثلا ذریت البقایا کیا میں یا نہیں تسی کیا نہیں تسی خنزیر کے بچے تو لے کے تے تیری بہن نو تے تیری ماں نو, کتی کا بچہ بھی کہا میں نے, تھوڑا اضافہ مجھے بتا. نہیں میں دسن تے دیا نا. تسی میں ہن ایک گل کہواں گا تے پھر تانوں پھر اسی طرح لگے گا. زنے بازاراں دی اولاد تسی آکھو نہیں خدا پہلے کمنٹ انہوں نے کیتا سی کہ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں, تو میں کہا سی آ کے اوتے سوال کر لو, تے انہوں نے اوتے آ کے ٹاپک بدل دیا. اونوں او سوال نہیں ایک بات چھیڑ لاں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی سوال میں کس وجہ تو کیتا. علی بھائی ماڈریٹر بنا دینا اپنا فاروق بھائی علی. ہاں جی تسی کرو جی. عامر بھائی پہلے ہی آئے نے, مناؤ منو ہونا. عامر بھائی بجائے اس دے کہ میں انوالو ہوا, میں اپنی گل کر چکا ہے. میں 112 نال کوئی گل نہیں کرنا چاہتا. تسی منو یہ دسو کہ وہ تانوں جڑا تسی سوال میرے کولوں کیتا سی وہی سوال دا سٹارٹ انہاں نال کر لو کہ کیا تسی سانو غیر مسلم کہندے ہو یا پھر مسلمان ہی سمجھدے ہو, اور کیوں سمجھدے ہو. جی کرو انہاں نال گل بات. عامر حق بھائی کرو, میں تھوڑا بزی ہوں. ہاں جی کر لو جی. عامر حق بھائی کر لو, جڑا مرضی کر لے کوئی. جی خیریت ہے 1122 بھائی. جی بالکل جی خیریت ہے. تھوڑا کو اس میں گرامی پتہ چل سکتا ہے, ایزی ہو جائے گا. امتیاز نام ہے میرا. ٹھیک ہے امتیاز بھائی, خیریت سب ٹھیک. فرسٹ ٹائم تو مثلا گل ہوگی. نہیں فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی. یہ 2 دن پہلوں تسی 1.5 گھنٹہ مینوں گالاں کڈیاں نے, لیکن وہ کسی اور آئی ڈی تے کڈیاں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, چھڈو اس گل. کسی اور آئی ڈی تو کڈیاں, یعنی کہ میری کوئی اور آئی ڈی سی تے او دے اوتے تسی مینوں 1.5 گھنٹہ گالاں کڈیاں, لیکن چھڈ دیو اس گل نوں. خیر اچھا مثلا ذریت البقایا کیا میں یا نہیں تسی کیا نہیں تسی خنزیر کے بچے تو لے کے تے تیری بہن نو تے تیری ماں نو, کتی کا بچہ بھی کہا میں نے, تھوڑا اضافہ مجھے بتا. نہیں میں دسن تے دیا نا. تسی میں ہن ایک گل کہواں گا تے پھر تانوں پھر اسی طرح لگے گا. زنے بازاراں دی نہیں تسی آکھیا میں عضو تناسل کاٹ کے تمہارا منہ میں دے دوں گا, یاد آیا کوئی؟ یاد آیا جو مرزا بشیر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کاٹ لینا چاہیے تھا. ہاں جی بہرحال چلو جو بھی مجھے بتاتے گالاں دتیاں سن. کوئی بات نہیں, تسی جڑا ٹاپک لگا نا اودے تے گل کرنا چاہندے ہو تے کر لو. نہیں وہ آپ نے اصل میں کہا نا, ذکر کیا, میں تو ٹاپک پہ آنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا تسی مینوں پوچھیا ہے کہ میرے نال تہاڈی پہلی گل ہوئی ہے تے میں تانوں یاد کرایا کہ تسی 1.5 گھنٹہ مینوں گالاں کڈیاں تھلے لا کے. تو او مینوں یاد کرا دیو نا, میں کیڑی گل کری. یاد نہیں آیا؟ نہیں یاد یہ بھی نہیں آیا. نہیں مجھے نہیں یاد آیا. کیا گالی دی؟ نہیں گالی کیا دی تھی یہ نہیں یاد, واقعہ یاد آ گیا نا. نہیں مجھے نہیں یاد ہے. اچھا چلے ٹھیک, صحیح بات ہے. چلے کوئی بات نہیں, بعد میں کر لیں گے. آپ کریں بات جو ہو سکتا ہے آپ کو گالی وغیرہ مجھے یاد کروائیں تو ہو سکتا ہے یاد آ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ بعد میں کر لیں گے. آپ جو ٹاپک ہے وہ اس پہ بات. عامر صاحب ہنے انہوں نے دسیا کہ کی گل ہی ہے. اچھا تسی مائک میوٹ کر لینا ہوں, تاک ماشاء صاحب نہیں تو تھلے جاؤ. مائک میوٹ وچ نہیں بولنا ہوں, کام خراب ہو گیا. تھلے بیٹھ جا چپ کر کے تھلے بیٹھ جا. پالٹا گلا ماحول نہ ایتھے بنا میرے نال. اچھا وہ دن چلے گئے نا, وچ نہیں بولنا. تو آپ کہا کہ میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا, پھر وچ نہیں بولنا ہوں. میں اپنے حساب نال سرجری کراں گا. جی پیارے 1122 بھائی, آپ کو بڑا اچھا لگا. امتیاز بھائی خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز لکھی کمنٹ سیکشن میں, وہ یہ لکھی کہ وہ نبی ہوں گے یا نہیں. جی یا بالکل آپ سوال اپنا دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے اس سوال پہ بات کرنی ہے. یہ جو عامر نذیر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ان کی مسلمات ہیں روحانی خزائن, اس سے میں نے کوئی چیز ثابت کرنی ہے جو ابھی ٹاک ماسٹر صاحب کے ان کے منہ سے آپ نے دہروائی ہے بات کہ وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. کیا آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یا میرے سوال پہ بات کرنی ہے جو میں نے نیچے رکھا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے کمنٹ یا آپ کے نیچے میسج کے اوپر ہی میں نے آپ کو دعوت دی, آپ سٹیج پہ ہیں تو بات ہوگی اسی پہ جو میں موضوع بیان کر رہا تھا. کوئی بات نہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ ہی کی بات کا جواب آپ سے لوں گا یا سوال آپ سے پوچھوں گا رادر دن کے چوتھے محلے میں کسی نے کیا کہا. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ اپنا سوال دہرانا چاہیں گے, میں آپ کو موقع دیتا ہوں تاکہ میں اس پہ بات کر سکوں. ہاں جی, اب میں نے جو سوال لکھا تھا آپ نے بیان بھی کر دیا. جب وہ آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
ठीक है। अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए आपको दो चीजों में फर्क करना होगा। अब मुझे जानना ये है कि आप फर्क करते हैं या नहीं। नबी और नबूवत, आपको पता है इन दो चीजों में फर्क होता है? नहीं, इसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता मेरा रहा हूं। सवाल नबूवत पे नहीं है, मेरा सवाल है वो नबी होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल है। जबरदस्त। नबूवत का मेरे से इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक वो है, नबी होंगे या नहीं, ये मेरा सवाल था। जबरदस्त। इसका मतलब है आप ये मान गए हैं कि नबी नबूवत का कोई इससे लेना देना नहीं। इसका मतलब है नबी और नबूवत में आप फर्क करते हैं, ऐसा ही है ना? ये नबूवत को जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई अल्फाज बयान करेंगे तो उसका मतलब नबूवत आती है, नबूवत जाती है, नबूवत लानी होती है, नबूवत उतरती है। वो अल्फाज, उसके मैंने, उसका मफहूम और होगा, ठीक है। और नबी, ये नबी है, वो नबी है, ये नबी था, ये नबी होने वाला है, ये नबी होता, उसकी कहने के मफहूम में क्या और चेंज। इसलिए दोनों लफ्ज में मानी जो है वो बिल्कुल अलग अलग कई बार हो जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपने जो तफसील बयान की, मैं उससे ये समझ पाया हूं कि नबी और नबूवत एक अलग अलग मौजू हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। यानी जो नबी होगा जरूरी नहीं कि उसके पास नबूवत हो, और जिसके पास नबूवत हो जरूरी नहीं कि वो नबी हो। मैं सही समझा आपकी बात? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है जो नबी होगा उसके पास नबूवत भी होगी, जाहिर बात है। और जिसके पास नबूवत हो वो नबी भी होगा। ज़ाहिर है, नबूवत और नबी एक ही चीज है मेरे हिसाब से। ये बयान करने में थोड़ा फर्क आ जाता है। इसका मतलब है कि जिसके पास भी नबूवत होगी वो नबी होगा। हाँ जी, ठीक हो गया। ले जी, जवाब आपका देने लगे हैं। किताबें हैं आपके पास? कौन सी? रूहानी खजाइन। क्या उसको को अभी जरूरत नहीं है, उसकी क्या जरूरत है? जी जरूरत है ना, आपको जवाब नहीं देना? ठीक है, करें आप। जो आपने जवाब देना है तो मेरे पास किताब होनी जरूरी है। ठीक है, यानी मैं चाह रहा था कि ये ना हो आप कहें कि तुम अपनी तरफ से बात कर रहे हो। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था आपको उसका जवाब दे दे कि वो नबी होंगे या नहीं होंगे। इसका सवाल जवाब का हाँ होंगे या नहीं होंगे, बस ये जवाब। आपको जवाब चाहिए ना? हाँ जी, बस जबरदस्त, ठीक हो गया। यानी मैं ये चाह रहा था कि ये ना हो मैं किताब पढ़ूं तो आप कहीं कहें ये अपनी तरफ से पढ़, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पता कर लूं। जी ठीक है। अच्छा जी, यार चाय पाइए थोड़ी कम पा दे। अच्छा, अल कीजिए ना, चुस्की वाली गर्म करनी है जरा, मजा आने लगा है। बड़ी अच्छे बात जड़ा ना एक मैं पिड़की लगी। अच्छा 1122 भाई, ज्यादा मजा नहीं लेना। अच्छा सॉरी, मैं मादर चाहना हूँ, मैं माइक म्यूट करना भूल गया, सॉरी। अच्छा जी, 1122 भाई, रूहानी खजाइन का वॉल्यूम है 3 और पेज है 59 और 60। उसमें मिर्जा साहब ने यह बयान फरमाया कि आने वाले मसीह के लिए नबूवत शर्ती नहीं है। नबूवत शर्ती नहीं है। इसका मतलब यह है कि नबी सिर्फ उनका एजाजी नाम होगा, नबूवत शर्त नहीं है, नबूवत नहीं होगी। यह मिर्जा साहब कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब दोबारा रिपीट करने लगा हूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबीउल्लाह कहकर तो पुकारा जाएगा, मगर नबूवत उनके पास शर्त नहीं होगी। जी, अब इस सवाल के ऊपर आपको कोई एतराज है कि उनका एजाजी नाम नबी होगा, इस पर कोई दलील चाहिए? उनके पास नबूवत नहीं होगी, इस पर कोई दलील चाहिए? कोई एतराज है? जी जनाब, रखें। ठीक है जी, मैंने जो सवाल किया था, क्या वो नबी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, उनके पास नबूवत होगी या नहीं होगी, फिर तो ये जवाब बिल्कुल ठीक था। अभी आपने मुझे मुख्तसर जवाब देना है। नबूवत का जो लफ्ज है ना, उसको एक मिनट साइड पे रख के आपने सिर्फ इतना बता दें कि वो नबी होंगे ना, आप ये बता दें हाँ होंगे, बस बात खत्म हो जाती है। जी, मैंने आपको जवाब दिया है, आप अगर सुनते आपको पता चलता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब है आपका सवाल दोबारा रिपीट करना दो चीजों से खाली नहीं। या आप टाइम बाय कर रहे हैं, या आपको पता चल गया है कि ये एक डेड एंड है, इसमें ना आप मेरे जवाब को गलत कह सकते हैं ना सही। अगर सही कहेंगे तो आमिर हक सही हो जाएगा, अगर गलत कहेंगे तो मिर्जा साहब गलत हो जाएंगे। आहा, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। बात कीजिएगा आमिर हक से जरा देखभाल कर। जी जनाब, सवाल मैं दोबारा जवाब आपका रिपीट कर देता हूं इम्तियाज भाई। वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी तो होंगे, मगर नबूवत की शर्त उनके साथ नहीं है। जी कहें जी, गलत है ये जवाब मैंने दे दिया, नबी वो होंगे। हो गया। फिर देखें, आपने अभी मुझे दो फिक्रे सुनाए हैं। वो नबी तो होंगे लेकिन उनके पास नबूवत नहीं होगी, आपके कहने का यही मतलब है? जी गलत है ना ये? नहीं, मैंने कब कहा गलत है? मैंने कहा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सही है? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सही है या गलत है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपका सवाल क्या था?
मेरा सवाल था क्या वो नबी होंगे या नहीं होंगे? तो मैंने क्या बोला है, मेरे जवाब दोबारा रिपीट करना, वो क्या होंगे? आपने कहा है वो नबी तो होंगे, उनके पास नबूवत नहीं होगी। हाँ, तो इसमें आपके सवाल का जवाब क्या है भला? ये दो जवाब हो गए ना, आपने दो जवाब दे दिए, मुझे एक जवाब चाहिए। एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं ना, तो मुझे एक ही दे दे, कहते एक हैं दे हाँ देता वो हूं। नहीं होंगे या होंगे। मैंने आपको बताया, हाँ जी। आप ना इस जवाब को गलत कह पा रहे हैं। मैं क्यों ना, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है ना गलत या सही करने की इसको। मैंने तो आपसे सवाल आके किया था, नीचे किया था आपने, उसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भेजी, जी, उसके जी। जवाब में आप मुझे दो जवाब दे इसलिए रहे हैं। भेजी थी, इसलिए भेजी थी कि दो इस जवाब सवाल दे के रहे हैं ऊपर मानना और हुआ, उस पे आप इस सवाल के मुत्तफिक ऊपर। है। जी ये जी भी आपने मुमताज बता दें भाई, कि ये जवाब जो मुमताज आपने भाई, दिया जी जी वो मेरी मुमताज भाई, मुसलमात से दिया है। इस सवाल हाँ के जी। ऊपर मैंने आपको इनविटेशन इसलिए भेजा था कि जमाना हुआ इस सवाल के ऊपर मुझे कोई अहमदी प्यारा दोस्त मिला नहीं था। ठीक है आज आप मिले हैं तो मैं इंतजार के अंदर हूं कि आपका सवाल था क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे वो नबी होंगे या नहीं, ये आपका सवाल। जी। मेरा जवाब सुने दोस्तों, मैं कह रहा हूं ईसा इब्ने मरियम नबी होंगे, नबूवत नहीं होगी। अब ये उसको सही हाँ कहिए बस ठीक गलत? है, बस ठीक है, ये तो बात आपका जवाब आ गया ना कि वो नबी होंगे, जी, नबूवत नहीं होगी। यही जवाब आ गया ना, ये मेरे सवाल जी, का जवाब है कि वो नबी जबरदस्त। होंगे। जी जी जबरदस्त। इतराज है हाँ कोई? तो बस ये अगला जवाब इतराज, मुझे चाहिए था बस। अगला इतराज। मैंने अगला एतराज पेश ही नहीं करना, मैंने वो बात करनी है जो मेरी हाँ भाई। अगली बात। कि हमारे इम्तियाज भाई स्टार्ट में ये बात मान चुके हैं कि नबूवत और नबी दो अलग अलग मौजू शुरू हो सकते हैं, और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी उनसियत के साथ ये भी मान गए हुए थे कि नबूवत हो नबी ना हो, नबी हो और नबूवत ना हो, ये मुमकिन है। जब ये खुद मान गए थे तो इनको पता था कि ये जब ये सवाल पूछते हैं तो मैं दो कदम आगे जाकर उस सारे मसले को पहले ही हल कर चुका हूं अल्लाह के हुक्म से। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि इम्तियाज भाई मेरे दिए हुए जवाब पे एतराज करें, एतराज कर नहीं रहे हैं। हवाले में जरा सेट किए हुए थे तरतीब में, मगर वो मौका नहीं मिल पा रहा मुझे ना, आज भी रह जाएगा। इम्तियाज भाई सही है या गलत मेरा जवाब प्यारे भाई? ठीक है जी, मैंने जो नीचे सवाल कमेंट में किया था उस टाइम आपकी जो बात चल रही थी, ठीक है, उस बात के ऊपर मैंने ये सवाल छोटा सा लिखा था। मुझे ये था कि आप जो इसका जवाब उसी टाइम वहां पे दे देंगे, लेकिन आपने उस टाइम वहां पे जवाब नहीं दिया कि वो नबी होंगे, ठीक है ना। ये जवाब आपने अभी दिया तो बात खत्म। यही मैं चाह रहा था कि आप अपने मुंह से उस टाइम जिस टाइम आप बात कर रहे थे और मैंने कमेंट किया था, सॉरी, ये उस टाइम आप अपने मुंह से इकरार कर लें कि वो नबी हैं, बस ये बस। चीज उस टाइम के अच्छा, लिए इसका थी। मैंने इसका उस टाइम नतीजा के लिए इसका सवाल नतीजा ये क्या मुझे निकला? कोई एतराज, कोई डिबेट, कोई लंबे अच्छा, चौड़े काम मैंने इस पे ना करने की ख्वाहिश रखता था और ना ही मैंने करनी है। जो ठीक है, बात यानी करने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ वो मैंने बयान आते की थी, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट की थी आपकी रिक्वेस्ट। क्यों कि जब आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी 1 मिनट और 45 सेकंड मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं थी की, मैंने होल्ड करके रखी हुई थी कि मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं वो सवाल पे जवाब बात ही नहीं था करना चाहता जिस पे आपने इतना टाइम लगाया। मैं बात तब वो ही बात करना चाह रहा था जो जिसके ऊपर मैंने एक्सेप्ट की, तब जो टॉपिक चल रहा था जबरदस्त जबरदस्त। यानी कुफर इसका वाला, मतलब ये है कि उस पे आप कर लें बात तो मैं जी, करना यानी मेरी दोबारा इसका तैयार। मतलब ये है, यानी इसका मतलब ये है कि जिस सवाल को आपने कमेंट के तौर पर पेश किया उस पर आप स्टेज में बात ही नहीं करना चाह रहे, और लेकिन जो फिर भी ओरिजिनल की, मौजू नहीं था उसके ऊपर आप आके बात करना चाह रहे थे। अच्छा खैर, जो जिमनी बात फिर आमिर भी नजीर की भाई मैंने ने बात, की, फिर भी मैंने की। आपने फिर भी बोला कि नहीं, सवाल अभी अपना नहीं की, दोबारा अभी नहीं की। दोहराएं, हाँ, अभी तो हुई मैंने बात। दोहराया, जवाब ले लिया, बात खत्म। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे हक है? सवाल नहीं, पहले पूछ लें, अगर उसी टॉपिक पे पूछना है तो जो आपने भाई टॉक मास्टर साहब से उसी पे किया ही है ना इम्तियाज भाई, उसी पे है, और किस पे जाऊंगा, उसी पे हाँ जी, पूछूंगा। करें करें। हाँ, हाँ। आज सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि नबूवत और नबी ये दोनों आपस में अलग हो सकते हैं या नहीं? ये उस टॉपिक से लेने देने इसका कोई तल्लक नहीं है, उस टॉपिक से जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं बहुत अच्छे भाई, आप जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो तो एक अलग टॉपिक है ना, हाँ मगर जी। जिस पर आपने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने जिसका जवाब दिया और जिसमें जी, चाहिए जी। तो ये था कि आप उस पर तबसरा करते, आपने नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा तो हूं, मुझे आपने मुझे जरूरत इजाजत नहीं है। दी तो मुझे मौका तो देना, हाँ जी, जवाब दे दें आप। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ, पूछ ली। जी, नबूवत और नबी ये दो हाँ। आपस में अलग हो सकते हैं या नहीं? मुझे इसका नहीं पता, इस पे मैं तहकीक करूंगा, अच्छा, स्टडी ठीक है। करूंगा। अच्छा ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, ऐसा मुमकिन है कि किसी पर वही विलायत आए और वो नबी बन जाए? इस पे भी मैं तहकीक करके बताऊंगा आपको। ठीक है। ये बताइएगा, वही नबूवत मुनक़ता हो चुकी है या जारी है? इस पे भी मैं तहकीक करके बता सकता हूँ आपको।
ٹھیک ہے, مرزا صاحب کے والد کا نام اس کی تحقیق کریں گے, یہ بتائیں گے بعد میں. انہوں نے درج کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا شاید اس کی تحقیق کریں گے. چلیں, جزاک اللہ, تحقیق جاری رکھیے گا, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, بہت جی. لے جی 1122 اصل سوال جو تھا, جو ٹاپک تھا, اس پہ آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کو ویلکم ہے, اور باقی کسی کو بھی, ہر انسان کو ویلکم ہے, اس پہ بات کرنا چاہے تو آ سکتا ہے, جس پہ میں نے ایکسیپٹ کیا تھا آپ کی ریکویسٹ. جی جی جی, میں نے ریکویسٹ جس بیس پر بھیجی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہاں جی, وہ اچھا, لیکن وہ احمد نذیر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ وہ کے آپ میرے, مسلمات سے ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ تو ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں میں تحقیق کروں گا, میں تحقیق کروں گا, میں تحقیق کروں گا. آپ پیدائشی احمدی امتیاز بھائی یا بعد میں ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ پیدائشی احمدی ہوں. ٹھیک ہے, تحقیق آپ نے بچپن میں کر لی تھی کس چیز کی تحقیق؟ احمدی ہونے کی. احمدی ہونے کی نہیں, میں نے بڑے ہو کے تحقیق کی. پہلے قرآن مجید کو سچا سمجھا اور تحقیق کر کے اس کو سچا ماننا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں تحقیق کی, ان کو سچا ماننا, اور اس کے بعد مرزا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھا اور سچا مانا. جی, جھوٹے مدعی نبوت پر لاکھ لعنت ہو. امتیاز بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ ابھی تحقیق کریں گے, تو آپ احمدیت پر, تو اس کا مطلب ہے آپ نے تحقیق ہی نہیں کی. احمدیت پہ تحقیق ہے میری, کیوں نہیں تحقیق؟ جی, تو بتائیے ذرا کہ نبوت نبی سے الگ ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا موضوع, جید موضوع, جس پر انہوں نے وضاحت کی ہے نا, توضیح مرام میں, اسی طریقے سے حقیقت الوحی میں, اور ایک غلطی کا ازالہ میں, وہ مسئلہ نبوت ہے. پتا آپ کو, یقیناً پتا ہوگا. پھر بشیر الدین صاحب نے جو قلم ریزی کی ہے, بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, وہ کیا حقیقت النبوہ, موٹی کتاب, بہترین. اب میں آپ سے مسئلہ نبوت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت نبی سے الگ اور نبی نبوت سے الگ ہو سکتا ہے یا نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, میں مسئلہ کفر پہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں مسئلہ نبوت پہ بات کرنا نہیں چاہتا. تو آپ نے نیچے تو کمنٹ یہ کیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو سوال آپ کا تھا, آپ نے مجھے اس کہا. کا جواب آپ نے دے دیا, بات ختم, مجھے اس کے اوپر کوئی بات. اچھا, آپ میرے جواب, آپ نے بتایا نہیں, آپ میرے جواب سے مطمئن ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ میں نے یہ بھی آپ کو نہیں پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی آپ اس کی تفصیل کریں. میں نے یہی الفاظ جو آپ نے بعد میں بولے مجھ سے بات کرتے ہوئے, یہی آپ تب اس ٹائم بول دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ اس سوال کا مقصد پورا ہو جاتا, لیکن وہ آپ نے اس ٹائم وہ الفاظ نہیں تھے بولے, مجھ سے بات کرنے کے بعد بولے, تو میرا اس میں مقصد ختم ہو گیا, میرے اس سوال کا مقصد ختم ہو گیا. میں متفق ہوں نہیں متفق ہوں وہ الگ بات ہے. ہاں, اس بات سے متفق ہوں جو آپ نے باتوں میں کی, اس بات سے متفق ہوں کہ ان کے لیے نبوت جو ہے وہ شرط نہیں ٹھہرائی. ٹھیک ہے, تھینک یو امتیاز بھائی. دیکھیں مسئلہ, امتیاز بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ چیز نہیں کلیئر کر رہے کہ آپ میرے جواب سے متفق ہیں یا نہیں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ مجھے کہاں اصلاح کرنی ہے. آپ میری اصلاح بھی نہیں کر رہے, نہ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں آپ کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے اصلاح کروں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ مجھے موقع نہیں دے رہے, ہلکا پھلکا آپ نے دیا موقع. اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہے, آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ کمنٹ کیا کہ جناب جو ہے نا وہ نبی ہوں گے کہ نہیں. کمنٹ سیکشن کے اندر میں یہ ٹک ٹک کیسے کھیلوں گا, تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں, شیر والی ڈی پی آپ نے لگائی ہوئی ہے, تو ذرا کھل کے ذرا مزہ آئے گا بات کا. وہ بات ہی ہو بھائی یار, آپ تو زیر تحقیق اور زیر تعمیر ہیں ابھی. خیر چلیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیں جی, میری طرف سے تو اتنی بات ہی ہے. امتیاز بھائی سے بڑا میرا اچھا انٹریکشن رہا, اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت طریقے سے ایک ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہے. امید کرتا ہوں. ہاں جی, اگر کسی نے مسئلہ کفر میں بات کرنی ہے تو وہ کر لیں, جو ٹاک ماسٹر صاحب سے کر رہے تھے. نہیں, میں تو, آپ زیر تحقیق ہیں اصل میں, ورنہ میں ضرور کرتا. ہاں جی, نہیں, میں نے اس پہ تحقیق کر لی ہے مسئلہ کفر پہ. نہیں, وہ تو ٹاک ماسٹر صاحب سے میں مطمئن ہو گیا. انہوں نے ایسا دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ اور خم ٹھوک کے جواب دیا ہے, میں لاجواب ہو گیا. ٹاک ماسٹر صاحب نے بڑا دھڑلے سے انہوں نے کہا ایسی کی تیسی تم لوگوں کی جو ہے بہترین, تو میں مطمئن ہو گیا ان سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو جاز بھائی. اگر کبھی بھی کسی کو اس مسئلے پہ بات کرنی ہو تو جو اگر یہ بس الفاظ نہ بولیے گا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ صاحب نے اسی ٹائم بولا تھا تو میں نے اسی ٹائم ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی تھی کہ ان کے کسی بھی بندے کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. میں اوپر حاضر ہوا تھا. میں امتیاز بھائی ایک منٹ رکیے گا, معذرت انٹرپشن کے لیے. یہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دوں, ریکویسٹ عامر نذیر صاحب نے نہیں بھیجی تھی, ریکویسٹ میں نے بھیجی تھی. ریکویسٹ مسئلہ کفر پر نہیں بھیجی تھی, ریکویسٹ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کے نبی ہوں گے نہیں ہوں گے اس پر بھیجی تھی. اب انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لیے اگر کسی ٹائم پر ریکویسٹ قبول کیا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا جواب نہیں ہے. بالکل, میں نے 5 سوال آپ سے پوچھے ہیں, 5 کے جوابوں میں آپ نے یہ کہا ہے آپ کی بھی تحقیق نہیں آپ کریں گے, تو اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. میرے خیال سے امتیاز بھائی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مجھے بھی, میں بھی کوئی عالم دین نہیں ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں میں مجھ سے بہتر نالج ہو,
अल्लाह ने आपको ज्यादा सलाहियतें दी हो, ये ऐन मुमकिन है। ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये था कि इसी टॉपिक के ऊपर ये जो मसला कुफर है इसके ऊपर अहमद नज़ीर साहब कह रहे थे कि वो फलाने बंदा था, उसको नीचे बहन ने आके ये कहा कि तुम इसके सवाल का जवाब दो। मैं भी ये समझना चाहती हूँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, या मैं कुछ भी, तो उस पे उस बंदों के पास, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस बात के ऊपर मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई भी जवाब चाहिए तो वो जवाब मिल सकता है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा मैंने और आपसे एक बात इन्होंने एक बात और लिखी, एक बात और की थी कि तज़किरा में मिर्जा साहब का इल्हाम मौजूद है, तो वो बिल्कुल इल्हाम मौजूद नहीं है। वो इन्होंने इनकी दुरुस्तगी का करवाना चाह रहा था कि वो इल्हाम की तस्दीक नहीं हुई, तो इसलिए वो इल्हाम अब मौजूद नहीं है जो इन्होंने अच्छा, अभी बयान किया था उनके सामने। तज़किरा में वो नहीं छपा। ठीक, अच्छा सही है, चलें वो बता देंगे। तज़किरा बहरहाल मेरे ख्याल से मिर्जा साहब के बाद ही सारा मामला हुआ। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था 1122 भाई, आपने तकफीर के हवाले से कहा, मैं सवाल एक पूछ सकता हूँ तकफीर के मौजू पर? जी पूछ सकते हैं जी। जी, ये तकफीर जो यानी किस नबी का इनकार जो है उसमें तकफीर की जा सकती है? और सवाल को और जरा वाज़ेह कर दें। और वादे करते, नबी का इनकार कुफर होता है, ठीक है ना? ठीक है। हर नबी का इनकार कुफर होता है या कोई ऐसा नबी भी हो सकता है जिसका इनकार कुफर नहीं? जो इनकार के मैनी यानी कि कुफर यानी कि इनकार, वो तो आप अगर मेरी बात का भी इनकार करेंगे तो आप वो लुग़वी मानों में कुफर करेंगे मेरी बात का, ठीक है। और इस्तिलाही मानों में? इस्तिलाही मानों में जो काफर का लफ्ज यूज होता है, जो कि इस्तिलाह हमें मिली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो एक इस्तिलाही माना ये होता है कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का मुनकर है वो काफर है। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। अच्छा, कोई अगर कुरान के मानी का यानी कुरान का इनकार नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर रहा, मगर ये है कि उसको फाहम समझ नहीं आई सही कि भाई यार ये नहीं, बात नहीं बन पा रही कि ये इससे निकलता हो कि मिर्जा साहब जो हैं वो नबी हैं या मिर्जा साहब मुल्हम हैं या अल्लाह की तरफ से हैं, उसके बारे में क्या राय है? उसके बारे में मुझे कोई हक किसी तरफ से, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ना कुरान मजीद की तरफ से, ना मिर्जा साहब की तरफ से, कहीं से भी ये हक मुझे नहीं मिला कि मैं किसी के ईमान का या किसी के भी फहम का फैसला कर सकूं कि वो फहम उसने ठीक लिया है या मेरा ठीक है, उसका गलत है, या उसका गलत है या मेरा ठीक है। कुछ भी इस तरह का फैसला करने की जो मुझे इजाज़त है वो मुझे कहीं से नहीं मिली। ठीक है जी। अच्छा, ये इजाजत बशीरुद्दीन साहब के पास थी? मुझे नहीं पता, यानी खलीफा है ना वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरी आप उनको मुसलमान मानते हैं? जो है वो महदूद हैं, वो कुरान मजीद, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद रूहानी खजाइन। अच्छा, वहाँ यानी तक बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब को आप नहीं मानते? मानता हूँ, ठीक है, क्या मानते हैं? उनको मसीह मौद का खलीफा मानता हूँ। मुस्लिम मऊद मानते हैं? मुस्लिम मौद मानता हूँ बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को। बिल्कुल, तो मुस्लिम मऊद यानी मुस्लिह का मतलब होता है रिफॉर्मर, द प्रॉमिस्ड रिफॉर्मर। ठीक है। ठीक है, यकीनन, तो यकीनन वो जो इस्लाह करेंगे, जो वो चीज़ पेश करेंगे, ऑब्वियसली वो एक इस्लाह होगी क्योंकि प्रॉमिस्ड है वो। मेरी मुसलमात जो है वो रूहानी खजाइन तक महदूद है। अच्छा, वहां तक है। हुज्जत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, एक बात छोटी सी पूछनी थी। अच्छा, ये 1122 साहब एडिशन छपा है, एक 84 का एक छपा है अभी एडिशन, आप किस एडिशन के रूहानी खजाइन को मानते हैं, जो अभी छपा है ये वाला या 84 वाला? एक रूहानी खजाइन का जो एडिशन कोई भी हो, वो तो कहने के यार एक हाँ शुरू से लेके उसको ठीक है उन्होंने कह दिया, नहीं भाई उन्होंने कह दिया हुआ है वो, आप अलहदगी में तसल्ली से बात करें, मैं बस मुख्तसर तेजी से जाने लगा। चलो ठीक है, कोई नहीं मसला। ठीक है। अच्छा 1122 भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मिर्जा साहब को आपने कहा मान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर नबी का इनकार इस्तिलाही माना के अंदर कुफर माना जाता है, आप सुन रहे हैं? जो एक इस्तिलाह चल रही है कुरान मजीद और अहादीस के बाद, जिस तरह कुरान मजीद में आया है कि कुफर का लफ्ज आया है 12 जगह पे, तो जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे का इनकार किया, उनकी बातों का इनकार किया, उनके बारे में एक लफ्ज यूज हुआ है काफिर का, ठीक है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 हदीस में मिलता है। वो वाला कुफर जो है वो कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कुफर है।
اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یہ اصطلاح جو ہے وہ پچھلے انبیاء میں کہیں پہ نہیں ملتی، تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً سب کی تعلیمات کا ہی انکار کرتا ہے، سارے انبیاء کرام کی، چاہے وہ صاحب شریعت ہوں یا نہ ہوں. ہاں بالکل وہ سب کا انکار ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے دین کا انکار ہے، جو کہ ایک مجموعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سارے انبیاء کا. زبردست. یعنی جو آپ کی بات سے کلیئر نکلا وہ یہ نکلا کہ چاہے کوئی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، جو اللہ کی طرف سے نبی ہے یا رسول ہے اس کا انکار مطلق کفر ہے، کھلا. نہیں، یہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، انہوں نے یوز کی ہے اور قرآن مجید میں یوز ہوئی ہے. کون سی اصطلاح؟ جو اصطلاح یوز ہوئی ہے، یہ جو کفر والی اصطلاح، آپ جو ایک تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کا انکار کریں گے، آپ میرا انکار کریں گے تو میری بات کا انکار کریں گے تو میری بات کا انکار کفر ہو گیا. دیکھیں امتیاز بھائی، دیکھیں وقت بچاتے ہیں. میں نے اس لیے خاموشی سے آپ کو سنا تھا کیونکہ بنیاد آپ کی آ گئی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں نا، جو آپ کا ایک جو آپ نے بنیاد رکھی ہے کہ ایک ہے لغوی انکار، ایک ہے پھر اصطلاحی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں سارا سمجھ گیا جو آپ نے بنیاد رکھی، آپ کس معنی میں مانتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چاہے کوئی شخص صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، جو اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے یا نبی ہو یا رسول ہو، اس کا انکار، آپ سن رہے ہیں؟ آپ بیک سائڈ پہ چلے گئے. ٹاک ماسٹر صاحب ان کو کالز نہ کریں پلیز. نہیں، میں مجھے کال نہیں کر رہے، اوپر وہ بیٹری لو والا جو ہوتا ہے نا وہ آ گیا تو اس کو میں نے ہٹا دیا. I'm sorry، لو ہو گیا سب کچھ جی، بیٹری چارج اس کو کر لیں. اچھا امتیاز بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب شریعت ہو یا غیر صاحب شریعت ہو، اس کا انکار، یہ اصطلاح جو کفر والی اصطلاح ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوئی اور قرآن مجید میں استعمال ہوئی. نہیں میں اس کی اصطلاح کی بات نہیں، کفر کا تو مسئلہ حل کر دیا نا آپ نے. کیا میں نے مسئلہ حل کیا؟ وہ جو کفر والا میں کہہ رہا ہوں صاحب شریعت میں نے کیا کیا، حل میں نے کیا کیا؟ یعنی اس کا مطلب آپ نے حل نہیں کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے. میں نے کب نہیں کہا؟ میں کس کو میں نے یہ کہا ہی نہیں. ہاں اچھا جی، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں میری باتوں سے کیا مطلب لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. میں سمجھنا، میں آگے بڑھ کر سمجھنا چاہ رہا ہوں. حق نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے فہم کے حساب سے کسی کا فہم غلط سمجھوں یا کسی کا فہم صحیح. میں نے یہ آپ سے کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو اپنی وہ جو سوال رکھا تھا اس کی آپ نے وضاحت پیش کی. جب آپ نے لغوی اور اصطلاحی کفر کی بات کی میں اسے وڈرا کر دیا. اب تو میں کنکلوژن کی طرف جلدی جا رہا ہوں تاکہ دیگر لوگوں کو موقع ملے. اور بیٹری بھی چونکہ آپ نے کہا لو ہے تو وہ پھر میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم چل جائے گی، چل جائے گی 15-20. اچھا ٹھیک ہے. اچھا 15-20 منٹ کے لیے چونکہ ہم جلدی سے پھر کنکلوڈ کر لیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک نبی چونکہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو میں دو صورتوں میں سے ایک چیز ہے، یا آپ ٹائم بائی کر رہے ہیں یا آپ چیزوں کو ڈیلیبریٹلی اگر ڈیلے کر رہے ہیں تو I'm really sorry. سوال بڑا کرسٹل کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب شریعت، آپ یہ تقسیم سمجھتے ہیں نا کہ ایک تشریعی نبی ہوتا ہے غیر تشریعی، رائٹ؟ نہیں، یہ بھی مجھے اس چیز سے اس ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی شرعی نبی ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ غلط سمجھتے ہیں اس تقسیم کو؟ نہیں، میں تقسیم کو غلط نہیں سمجھتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے لینا دینا نہیں ہے. تکفیر کے موضوع سے لینا دینا نہیں ہے اس کا؟ نہیں، اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ہم جس کفر کی بات کر رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ تو کفر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کی بات کر رہے ہیں نا. آپ جس ٹاپک پہ آئے تھے اس وقت مرزا صاحب کے انکار کے کفر پہ بات ہو رہی تھی، کسی اور پہ ہو رہی تھی؟ امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی. آپ کو پتا میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں بتاتا ہوں. وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کون کافر ہے اور کون کافر نہیں ہے. نہیں، سوال یہ ہو رہا تھا، میں بتا دیتا ہوں. سوال اس کا مطلب ہے کہ آپ سن رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریکویسٹ میں نے جب ڈالی آپ نے ایکسیپٹ کی اس ٹاپک کے اوپر کہ تکفیر کے موضوع پر. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی تیاری ہے، آپ نے کہا تکفیر کے موضوع پر میں پڑھ بیٹھا ہوں، میری تیاری ہے. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں، اب میں کون ہوں، میں کہاں ہوں والی کیفیت ہے. میں یہ دیکھیں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ہاں جی، آپ تشریعی اور غیر تشریعی کی تقسیم کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ مانتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کیا ہے تکفیر سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر تشریعی اور تشریعی کی تقسیم کا تکفیر سے تعلق نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی کفر کا فتویٰ جو لینا چاہ رہے ہیں اپنے لیے اور جو مجھ پہ لگایا ہوا ہے یا لگاتے ہیں، اس چیز سے تعلق نہیں ہے. اس چیز سے تعلق یہ ہے، مرزا صاحب کا کفر، وہ ان کی بات کا انکار کیا، وہ اگر میں نہیں دیکھے جائیں کفر کرنا وہ ایک اور معنی بن جاتا. لیکن جو تکفیر آپ بنا کے بیٹھے ہیں جس تکفیر کا، اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے. وہ ہمارا کفر وہی تک محدود ہے. آپ سے میرا سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا اس سے کوئی لینا، سوال ہی نہیں ہے. یہ تو ارریلیونٹ چیز آپ کر رہے ہیں، اسے بولتے ہیں ریڈ ہیرنگ.
अच्छा ये जी, रेड हेरिंग है, लॉजिकल फैलेसी आप कर रहे हैं कि जो असल मुद्दा नहीं है आप उससे कुछ और बात करना शुरू। मैं कहूँ कि भाई आप भी जो है मेरी ना बात सुने, आप भी तो मिर्जा, उधर उधर मुद्दा ना, ये जो देखें जो मुद्दा आप उठा के बैठे हुए थे, जिस तरह आपने उनसे बात की थी भाई कि तकफीर का हर देखिए ये गलत बात है इम्तियाज भाई, आप ये बहुत मिर्जा साहब ने तज़किरा ये में इंतहाई गलत बात है कि आपको मैंने कहा कि एक हाँ सवाल आपने जो पूछा है वो जो कमेंट में था वो सामने आया, फिर मैंने हाँ कहा तकफीर, आपने कहा तकफीर के मौजू पर मेरी तैयारी है, आप पूछें भाई, बाकी मैं तहकीक करूंगा अभी। ठीक है। मैंने उस पर कहा ठीक है मैं सवाल पूछ लूँ, आपने कहा बिल्कुल तकफीर के मौजू पर पूछें। अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि जी आप मुद्दा बदल रहे हैं। भाई क्या आपने पूछ मुझे रहे, इजाजत आपका दी, दावा क्या है? आप पहले दावा अगर रखें, आपका दावा रखें। अगर आप मेरे सुनिए, सवाल शुरू में ही इस मुझे तरह कह देते सवालों कि ये जवाब आप हट तब रहे हैं होते टॉपिक हैं से तो दावे बात के होती है। बाद अगले का दावा आ जाए या नहीं, अपना दावा आ जाए। ये सवाल जो होते हैं ये इसके बाद होते हैं। फर्क समझें, अब फर्क रखें, अपना समझें। दावा रखें। नहीं ये बात गलत है इम्तियाज भाई। नहीं तो ये सवाल जो है, ये सवाल जो लेकिन आप अभी जिस कर रहे हैं, तरह मुझे लग रहा है कि इस्तेलाह जिस कौन सी कहाँ जिससे भी यूज होती है, कहाँ नहीं इम्तियाज होती, भाई, ये आप इम्तियाज दावा भाई, रखें, अपना दावा रखें। इम्तियाज हाँ भाई जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जी जी, अखलाक का, इल्म का, गुफ्तगू का तकाजा ये है कि जब मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, अगर आपको लग रहा था कि ये सवाल पहले मुतालबा करता है कि सामने वाले का दावा रखा जाए, आप तब कहते। अब मुझे लग रहा है कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आया था ना, ये बैटरी लो का नहीं आया था, ठीक ठीक है। है ना? अच्छा गौर करें, अब तवज्जो करें, जो भी आपको भेज रहा है मेरी रिक्वेस्ट उसके लिए भी है, आपकी बैटरी खत्म होने लगी है वो आ जाए चार्ज करके। अच्छा अब सुने इम्तियाज भाई, सवाल मैं सिर्फ आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, तकफीर का ताल्लुक क्या तशरीई और गैर तशरीई के मौजू से है या नहीं? आप क्या समझते हैं, है कि नहीं है? जी जनाब। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप दावा रखते हैं अपना, ठीक है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें, बातें डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। यानी इम्तियाज भाई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि तशरीई और गैर तशरीई का ताल्लुक तकफीर के मौजू के साथ है या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सवालों जो आप दावे के बाद मैं इसको जवाब दे सकता हूँ, अपना दावा इस स्क्रीनशॉट के साथ टाइम और डेट भी ऐड करें। मैनू की पता केड़े 17% वाली है, पिछले साल दी है या पिछले महीने दी है, मैनू की पता। अच्छा ठीक है। सवाल इतनी मेहनत अगर आपने सवाल के जवाब पे, इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि आप शायद इम्तियाज भाई आपको मेहनत समझ के करनी बैठे हैं चाहिए, कि मुझे इसका कहीं मतलब है से आपने कोई तकफीर, इसका कोई मतलब है तकफीर के नोटिफिकेशन मौजू पर भी आपने तहकीक नहीं की। ठीक है। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सारी तहकीक आपका पता चला, अपना दावा रख दें, देखिए अपना दावा इम्तियाज रख दें, भाई, उसके बाद सारी तहकीक मेरी देख लीजिएगा कि मैंने क्या की है क्या नहीं की। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, क्या साहिब शरीयत या गैर साहिब शरीयत दोनों के इनकार से तकफीर लाजिम आती है? हाँ जी, आपने पहले कहा आप अपना दावा रखें, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब जितने मैंने दे दिए वो दे दिए, इसके बाद अगले सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप अपना दावा रखेंगे। अच्छा दावा मैंने रखना, मैंने दस दे दो मेरा दावा, मैं रखना का दावा, मुझसे क्या मुतालबा आपका, क्या रखूं पूछें। यानी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कह रहे हैं पहले अपना दावा रखें। भाई किस बारे में आपको, यानी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कह रहे हैं पहले अपना दावा रखें। भाई किस बारे में आपको मेरा चाहिए, मैं बता देता हूं मेरे बारे में क्या चाहिए आपको, पूछें। हाँ जी, जो आपने अभी मेरे ऊपर आने से पहले 2 मिनट पहले ये बात अमन नजीर साहब ने भी की थी, और आप भी ये बात उनसे एग्री कर रहे थे कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने कहीं पे तकफीर की है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं उसके ऊपर आप ये बात खुल नहीं हो के रही अपना दावा रखें। लानतुल्लाह काज़िबीन। हाँ जी हाँ जी, अब सुने उसके ऊपर आप अपना जो है वो कर दें, इम्तियाज भाई एक मिनट रुकें रख दे, दावा रख दे कि उन्होंने किस तरह की तकफीर की है। दो चीजों को गड़बड़ ना करें, ठीक है? झूठे मुद्दे नबूवत पर लानत हो हजार। सुने गौर से इम्तियाज भाई, फर्क आपने समझना। देखें सवाल ये है आपके सामने कि क्या साहिब शरीयत और गैर साहिब शरीयत का इनकार ये तकफीर से ताल्लुक रखता कि नहीं? आप अभी तक इसको नहीं बता पाए, टाइम जाया कर रहे हैं। नंबर एक, मैंने आपको मैं मुकम्मल करता हूं, उसके जवाब में आपने कहा कि मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक आप अपना दावा नहीं रखोगे। आप क्या मुझसे पूछना चाह रहे हो? क्या आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं इस तकसीम को मानता हूं कि नहीं मानता, मैं तकफीर किस कैटेगरी, ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं आप? सुन ले, पहला आपने सवाल किया कि ये मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हाँ, गैर शरी और शरी नबी, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने जो कुफर मेरे पे लगाना है या मैंने आप पे लगाना है, वो हमने कुफर कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर लगाना है एक दूसरे पे, ठीक है। अगर तो आपने ये बात करनी है कि शरीयत वाला नबी या गैर शरी नबी, फिर तो हमने पूरा दीन इस्लाम, पूरा अंबिया इकराम का टॉपिक लेके चलना है साथ में, कि वो उसका भी काफर होगा, उसका भी काफर होगा, इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। हमने जो टॉपिक लेके चलना है वो ये चलना है कि क्या बंदा, कोई आम बंदा कुरान मजीद के मानने वाले को कुरान मजीद का मुनकर या कुरान मजीद का काफर कह सकता है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और सादिक नबी मानने वाला क्या बंदा
दूसरा बंदे को उसी तरह के दूसरे बंदे को, यानी कि दोनों बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और सच्चा मान रहे हैं, और क्या एक बंदा दूसरे को काफिर कह सकता है? हमने ये टॉपिक लेके चलना है। हमने ये तो लेके नहीं चलना कि शरीयत वाला नबी या गैर शरी नबी। गैर शरी नबी होगा भाई, उसका टॉपिक ही अलग है। हमने जो कुफर और ईमान का फैसला करना है वो इन दो चीजों पे करना है, वो है कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। कि कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर उनको मानते हुए हो सकता है, कोई बंदा कुरान मजीद का मुनकर कुरान मजीद को मानते हुए हो सकता है। हमने ये टॉपिक लेके चलना था। आपकी बात आ गई, अब आप रुकें। और जो आपने टॉपिक मुझे शरीयत खजान को क्यों माइनस कर दिया है? मैंने आपको खामोशी से सुना। अमर आक भाई, अमर आक भाई, ये रवानी खजान को क्यों माइनस कर दिया गया है? सवाल मेरा ये है। देखते हैं, चेक करते हैं। जी नहीं भाई, आपका सवाल आ गया, मेहरबानी। आप मैं वो मुकाना चाह रहे हैं वहां, जरूर नहीं भाई, मैं चाह रहा हूँ आपका बीच में हिस्सा शामिल होना चाहिए। अब मुझे मौका आपने देना है इम्तियाज भाई, जिस तरह आपको मैंने मौका दिया ना, मैं खामोश रहूँ, आपने मुझे मौका देना है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि तासुर यह दिया जा रहा है कि मौजू इम्तियाज साहब ने देना था और उन्होंने दिया है, उस पर बात हो रही है। ये बात गलत है सिरे से, क्योंकि नए आने वालों को मैं बताता चलूं बात हो क्या रही है। सबसे पहले मैं रिवाइव करवा दूं, रिव्यू रीकैप करवा दूं इस चीज को जो पीछे गुफ्तगू चल रही थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो नबी होंगे या नहीं, ये सवाल था कमेंट में इम्तियाज भाई यानी 1122 भाई का, ठीक है जी। उस पर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। जब इन्होंने देखा कि आमिर नजीर साहब को बात कर रहे हैं तो ये स्टेज पर चढ़कर कहा मैं आपको, और माइक बीच में पट दिया कि मैं चैलेंज करता हूं उसमें, ताकि जो असल सवाल जिसकी वजह से रिक्वेस्ट की हुई थी वो पीछे रह जाए। खैर कोई बात नहीं। फिर जब मौका मिला तो मैंने इनको दोबारा रिमाइंड करवाया कि आप इस वजह से स्टेज पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने ये सवाल पूछा था। उस पर जब मैंने इनको जवाब दिया, इन्होंने उस सवाल के जवाब में कोई एतराज, जो मैंने पेश जवाब किया था उस पर कोई एतराज नहीं किया, ना उस पर कोई तनकीद की और ना ये कहा कि ठीक है, खामोश हो गए। उसके बाद मैंने इनसे 5 के करीब सवाल पूछे, इन्होंने कहा मैं अभी ज़ेरे तहकीक हूं, जब तहकीक मुकम्मल होगी मैं जवाब दे दूंगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद आगे बढ़े तो इन्होंने कहा तकफीर के मौजू पर कोई सवाल कर सकते हैं, मेरी उस पर तैयारी है। अब आप सुनिएगा गौर से, तकफीर के मौजू पर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, मेरी उस पर तैयारी है। अब आप गौर करें कि मैंने उस पर सवाल पूछा कि आप मानते हैं कि साहिब शरीयत हो या गैर साहिब शरीयत हो, दोनों की तकफीर, जो इनकार करेगा उसकी तकफीर होगी। अब आप देख लें कि ये आपके सामने मौजूद हैं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मौजू ये नहीं है। और भाई मौजू नहीं डिसाइड हुआ था, सवाल था, आपने मुझे इजाजत दी थी इम्तियाज भाई के सवाल पूछना है, उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मौजू तो है ही नहीं कि भाई को मुनाजरा होने लगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, इन्होंने मुझे कहा कि मैं जवाब तब दूंगा जब आमिर हक तुम अपना दावा रखोगे। तो पूछे ना मुझसे इस मौजू से मुताल्लिक जो मैं सवाल कर रहा हूं, मुझसे पूछ लें। मुझसे पूछ भी नहीं रहे, यानी ना मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ही जवाब दे दूं, ना खुद मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि लोगों को फायदा हासिल हो। मुझसे पूछे किधर गया? इन द लाइन ऑफ फ्लावर निकल गए। लो नहीं भाई, बैटरी लो ना 10 मिनट सारी गल होनी सी अपना अमर भाई। हाँ ना, वही मसला ना कि देखें एक लाइन तो हो रही है, उस लाइन के मुताबिक आप चलें और आप देखें कि मैंने जब इनसे सवाल, इन्होंने मुझे कहा सवाल पूछ सकते हैं आप, मैंने सवाल पूछा है। अब वो कहते हैं जी मौजू है ही नहीं सी, मौजू कुछ और ही सी। ये कहां से आ गया कि मौजू ये नहीं था तो मौजू वो था तो फलाना था? यार हद होगी इम्तियाज भाई, और टाइम सारा खोटी कर दिया आपने। वो बंदा किधर गया जनेदार? तो बंदा ना गवा लो, लाश ना मुद्दा ना गल पा लो, बंदा किधर गया? क्यों कर रहे हो? ना कोई मसला खड़ा कर। आओ जी इम्तियाज साहब तशरीफ ले होते। कॉल नहीं चुकी जा रही, या कोई एक बंदा मेरे ख्याल एक्स्ट्रा है, या नजर नहीं आ रहा ब्रॉड देते ना, तो नजर ही नहीं आ रहा, कोई आइडिया तो पता नहीं की होया जी। कॉल पाई है ने चुकन नहीं होंदी बिठा चुकन नहीं भी होंदी क्योंकि मैसेज आ रहा सी। मैं चुक लीजिए आमिर नजीर साहब ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਮੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਟੌਪ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਗੇ ਨੇ 11 ਭਾਈ ਆਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਸੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇम्तियाज भाई आ गए वापस, वेलकम। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। चले ये आवाज नहीं आ रही फिर झूठियां दे अल्लाह दी लानत। नहीं आ रही वो मसला सिग्नल। ठीक है इम्तियाज साहब। अच्छा चले आमिर नज़ीर भाई, मैंने अपना मुकदमा रख दिया है। सफिया बहन है, नहीं मवान भाई भी थे, वो भी आ गए। कह रहे सो मैं पूरी आवाज नहीं सुनी जी। हूं आ रही जे? हेलो इम्तियाज भाई, हूं आ रही आवाज?
आमिर भाई वो कुलिया नंबर 75 ना चेक कर लो, आवाज फौरी पहुंच जाएगी। अरे शायद ठीक हो गया, ठीक हो गया। कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ठीक हो गया। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਲੋ ਨੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਲੋ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨਾ। ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਜੀ। अकेले न जाना। हाँ, अकेले ना बाजार जाया करो, आमिर हक चप लेगा तो कप लेगा जी। जनाब बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ इतना ही जी। सवाल मैं रख देता है, सफिया बहन आ गई हैं तो आप करें। बहुत उम्दा आपने बात की है। सफिया बहन कोई गिला कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या कह रही थी। मैंने तो कहा आप बात कर सकते। हाँ जी, आप ये ना समझिएगा 1122 के अभी सिग्नल कम है, नहीं तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि जितना ये बच्चा घुमा सकता है टिकटॉक पे कोई और नहीं घुमा सकता। इसने अपना नाम भी इसीलिए रखा है। मतलब परसों पूरा दिन, पता नहीं, लेकिन परसों पूरा दिन इसे मुझे इतना घुमाया कि कल सारा दिन मैं बेड पे थी, तो इसलिए आप हल्का ना लें। मैं वही कह रहा हूँ, को घुमा सकता है ना। हमारे पंजाबी में कहते हैं जुलाई दिया मस्करियां माँ भैन नाल, लेकिन जब बाहर जाए ना लोगों से मर्दों, लेकिन ये तो मुझे माँ बहन नहीं समझता, पूछेंगे तो कहेगा नहीं। नहीं अच्छे भाई हैं, इम्तियाज भाई से अच्छी बात हुई। और मगर मसला ये है कि वो ज़्यादा बेहतर होता अगर वो मौजू पर आ जाते। सफिया बहन, मैं जो सिंपल सवाल पूछा था, आप मेरा सवाल समझ पाई थी ना सफिया बहन, जो मैं पूछ रहा था? जी वो ठीक है, लेकिन आप ट्राई करते रहें। अच्छा, मैंने तो आधी चम्मच कसम खाने को ही कहा था, तो वो मुझे 48 घंटे तक घुमाते रहे। ठीक, यानी आप कह रही हैं कि यानी आप कह रही हैं कि खत लिखता रहूं कभी तो जवाब आएगा, ये कह रही हैं आप मुझे? नहीं, ये बड़ा तेज बच्चा है, इससे नहीं कभी जवाब आने वाला। ये आपको भेजेगा कहीं और, देखें अभी। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कर दूं सफिया मोहतरमा साहब, आवाज नहीं आ रही आमिर भाई, आपको आवाज आ रही है? आमिर भाई किसी को आवाज आ रही है ये 1122 भाई की? जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो 1122 साहब, आप बोल रहे हैं क्या? हेलो जी, वो मौका मुनासबत के हिसाब से आती है ना। अच्छा, कोई ना। वो पता नहीं, वो किसी ने मुझे गाना भेज दिया, कहते बाहर ना आई घरे ही रही, तेन दुध लैन गए नु आमर चुक लेगा। नहीं, क्या नहीं, है नहीं, मैंने गाना याद आया, तुम अकेली कभी बाग में जाया न करो आजकल। ਤੁਸੀਂ मंजूम दी बजाय नसर पढ़ हो मलिक इमरान भाई? मलिक इमरान साहब मंजूम दी बजाय मजलूम पढ़ते ने। ये हमें मजलूम कर देते हैं इतनी खूबसूरत आवाज में। नहीं ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਨਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪਾਰਤ। हाँ, कोई वाकई ना आमिर हक भाई, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल गलियां बहुत शौक हुआ करती हैं। ठीक है, मैं कह इनको लाइक शेक करो, नहीं तो बराड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ना हुणे आमिर भाई मशीन जड़ा है, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਡਬਲ। देखो जाना शुरू हो गए लोग, ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। हो गए जे, जा रहे जे, चली गई जे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं कहना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਬਲ टैप करने एक बारी। डबल टैप दोस्त करें, शेयर करें, ये दोस्त उतरना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद ही। आ गए ने वही आ गए जिनका इंतजार था आपको। वाह, नजीर बलाल साहब आ गए जी। 5 किलो वाला खोल लो जी। लो जी, कुछ तो बरकत हुई बराड़ खराब होने दी जी। नजीर भाई, आमिर नजीर भाई मौजूद हैं? नहीं, मैं ये बिजी हूँ, 5-10 मिनट बस। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा मसला, कोई समझ आया सबको कि नहीं आया? जी नजीर भाई, आप जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं रखता फिर। आपने रखना है इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अगर जिस जमात में आप होंगे उधर मैं नहीं हूँ। ये क्यों भाई, ये तो नहीं होना है आपने, अल्लाह ने कहा है कि सब होंगे इंशाल्लाह। हाँ, सब होंगे, सब आएंगे, सब। मेरे साहब ने फरमाया कि सारे मुसलमान मुझ पर ईमान ले आएंगे, सिवाय जो है उल्टी गिनती जा रही है, मरदइयां दी उल्टी गिनती जा रही है, सब आ रहे हैं। नहीं, अदनान साहब आए ने, अदनान
ਅੱਛਾ ਬਈ ਬਰਾੜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆ गए। नहीं, हम बरकत के तौर पर आए हैं कि आपको कहीं गिरने नहीं देंगे इंशाल्लाह, उम्मत को कहीं भी कि वो नहीं गिरने नहीं देंगे। नहीं बशीर अली जहाँ साहब की हम ये बात, देखते हैं कि कोई उम्मत के अफराद या उम्मत नाउजुबिल्लाह कुछ गिरने का माहौल है, वहां हम पहुंच जाते हैं, संभाल लेते हैं, सहारा देते हैं वहाँ संभाल लेते हैं और फिरका फिरका करवा देते हैं। और अच्छा नजीर 72 भाई, को भी संभाल लेंगे, 72 को एक कर देंगे इंशाल्लाह, वो भी होना है हमारे जिम्मे। ठीक, नजीर भाई आपसे एक सवाल पूछना था अगर आपकी इजाजत हो। जी, मैं कोई आलिम फाजिल तो हूँ नहीं और सियासी दिमाग नहीं रखता हूँ, सीधा सीधा हूँ। और ये जो रहते हैं ना घुमा फिरा के ये फंसाने के लिए या दाव पेश, ये मुझे नहीं आते, ना मैं समझता इन बातों को। यानी इसका मतलब है आपको दाव पेच और शोबदाबाजी नहीं आती? हाँ, ये नहीं, मैं बिल्कुल मैं करीब, मुझे समझ नहीं आता, सवाल की समझ ही नहीं आती मुझे। अच्छा अच्छा, वो बशीरुद्दीन साहब तो कहते हैं कि बचपन में उन्होंने शोबदाबाजी की कुछ किताबें पढ़ी हुई थी। हाँ जी, वो इल्म है, उसमें पढ़ ले बंदा तो दूसरे की चालाकियां समझ सकता है ना, वो मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, जमात में किसने पढ़ी हुई है? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जमात में ये काम होते नहीं, वो सियासत और चालबाजियां गिराना, इधर से साइड से गुजर जाना, ऊपर हो जाना, होना और दिखाना और ये कुछ भी नहीं है, सादगी है। ईमान ले आए हैं वाकई इमाम पर, सादा जिंदगी गुजारते हैं बस, और मुख्तसर सी बात पे ईमान ले आए हैं, कोई लंबी तहकीक नहीं, लंबे जो है ना फलसफे नहीं है हमारे पास। अल्लाह रसूल का हुक्म, एक फरमान सुना तो उसको उस पर सर तस्लीम खम कर लिया और आपके दरबार में झुक गए, आपके दरबार से सब कुछ ले लिया, बस इतनी सी बात, बाकी कहानियां कोई नहीं लंबी। थैंक यू नजीर भाई। ये मैंने जानना था कि जो आप इतनी सादा लोही और इतनी मोहब्बत और इतना इश्क और उल्फत की बात करें, पैदाइशी अहमदी तो नहीं है कहीं आप? अच्छा पैदाइशी हैं, तो फिर ठीक है, हाँ फिर तो आप कुछ भी होते तो वो तो ठीक था, सही है। नहीं, उसके बाद मतलब थोड़ी ईद पैदाइशी से ये मुराद होती है कि आंखें खुली रखते हैं। अच्छा, सामने जब मिंबर रसूल पर हमारे मुरब्बी साहब या मौलवी साहब या वो कोई बयान कर रहे होते हैं ना, तो उस पे हम नजर रखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे बात हो तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, वे क्यों हो रहा है, इतनी है हमें मतलब। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं कुछ पूछ लूं फिर आपसे, ये जो मिंबर पर खड़े होकर कहा गया था उस पर कोई बात पूछ लें, अगर मुझे समझ आई तो बता देंगे, वरना तो कोई मसला कोई वो बस समझाने वाला भाई आ जाएगा, वो बात कर देगा, बस पूछिए, ये सवाल करिए। ठीक, सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बड़ी सादी सी बात है वो ये थी कि अक्सर कहा जाता है कि जो ये अहद लिया गया था, अहद आपको पता है ना जी, ये सूरह आले इमरान, अंबिया से जो अहद लिया गया, जी जी, ये बड़ी आजकल बात चल रही, तो इसमें आपका मौकफ क्या है नजीर भाई? मैंने अभी तक आपका मौकफ नहीं सुना। जी, वो जो कुरान करीम में लिखा हुआ है, अहद अंबिया से लिया गया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहद लिया गया, उम्मतों से, उनकी उम्मतों से, कि जब बाद में नबी आए तो उनकी मदद करना, मददगार बन जाना उनकी, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया, क्योंकि बाद ईसा इब्न मरियम का नज़ूल होने लगा है, तो फिर इस वजह से कहा उनकी मदद करना भी, तुम भी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यानी आपका मौकफ ये है कि ये जो रसूल मुसद्दिक यहाँ पर कहा गया है कुरान के अंदर आले इमरान में, इसमें मुराद मिर्जा साहब हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो बात अच्छा। सुने, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद लिया गया, किसके बारे में अहद लिया गया, उनसे किस चीज का अहद लिया गया? नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि इसमें जो आयत के अंदर आया है रसूल मुसद्दिक जो मुराद है, इससे मुराद मिर्जा साहब आप नहीं लेते? जी, मैं कह रहा हूँ कि वो जो है, क्योंकि बाद में अब आए हैं तो उनकी वो जो है ना तस्दीक उन्होंने भी की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम आई है उसकी तस्दीक उन्होंने भी कर दी। नहीं, वो बात ठीक है बिल्कुल, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे मुराद खास मिर्जा साहब लेते हैं या हर आने वाला जो होता है उससे अहद लिया जाएगा, मिसाक नबी, जितने नबी आए हैं उनसे ये मिसाक लिया गया, उनकी उम्मतों से लिया गया, आप क्या समझते हैं, खास मिर्जा साहब हैं या आम है? भाई जो तमाम अंबिया से लिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया तमाम अंबिया के बारे में, उसमें मिर्जा साहब भी आ रहे हैं। यानी मिर्जा साहब खास नहीं है, हर नबी जो है उससे मिसाक लिया गया था, और हर जो रसूल मुसद्दिक होगा वो आम होगा, यही कह रहे हैं, है ना? जी, इसमें अभी कोई और भाई नीचे हैं, वो अगर बात नहीं, मैं वो भाई से करता हूँ बात, मछली मंडी नहीं बनाएंगे। मुझे तो बात इतनी समझ आई है भाई, इतनी कि जो उसके जो एक नबी के आने के बाद फिर नबी उस की तस्दीक करते हैं, तो वो तो सिलसिला जारी है, क़यामत तक है, और भी कोई मिर्जा साहब आ गए, उनके बाद भी अगर कोई आ गया वो फिर मिर्जा साहब की तस्दीक कर देगा। जबरदस्त जबरदस्त। अब ये आपका एक मौलवी से ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब ये आपका एक मौलवी
मिंबर मिर्जा साहब पर चढ़कर खुतबा जुम्मा दे रहे हैं। नजीर साहब आपके मौलवी साहब हैं, उनका नाम है मीर मोहम्मद सईद साहब। अच्छा, उन्होंने मिंबर मिर्जा साहब पर चढ़कर ये खुतबा दिया जुम्मे का हैदराबाद दक्कन में, और कहा कि इस आयत में जो रसूल मुसद्दिक है उस वो मिर्जा साहब फर्ज करार दिए गए हैं, मिर्जा साहब हैं। उनका फहम भी ठीक है अगले, क्योंकि अहमद की वो हो रही है बात। हाँ जी, किधर किधर अहमद की हो रही है? ये आले इमरान की इक्यासी पर बात कर रहा हूं। ये मौलवी आपका मिंबर पर चढ़कर ये बात कर रहा है। आपने कहा था आप इतना समझ जाते हैं कि मौलवी मिंबर पर चढ़कर के बात। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये सही लिखा है उन्होंने? जी सही लिखा है उन्होंने। अगर लिखा ये तो आपकी पहली बात के खिलाफ जा रहा है। आप कहते हैं आम है, ये कहते हैं खास है। हाँ जी, खास भी इसमें खास उन्होंने फरमाया, ठीक है खास भी है बिल्कुल, क्योंकि देखें खास भी है, आम है, आम भी है एक ही टाइम पर। नहीं, वो देखें कि सूरज जुम्मा में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा आने की बात है, तो ये क्या आम है या खास है? नहीं, वो तो मेरी बात सुने, वो तो हम बाद में जिक्र करेंगे ना। अभी ये जो मिंबर पर चढ़कर मौलवी से तो फिर खास भी है। नहीं, देखें एक ही चीज एक वक्त में खास और आम नहीं होती, ये नस के इस्तेमाल को जाहिर करती है। आप नजीर साहब, मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आप जमाते अहमदी हैं तो फिर मैं नहीं कभी आऊंगा, क्योंकि आईक्यू चाहिए होता है दलीलों को समझने के लिए। इसका मतलब है आपको बेसिक नहीं पता कि खास और आम में फर्क क्या होता है। वो इल्म की गहराइयां जो है इतना मुझे नहीं पता मेरे भाई, ज्यादा। तो भाई ये कहे ना, ये अपने टामक तो ये कितनी गलत बात नजीर भाई। इससे पता चलता है कि जब आप इसलिए मेरा कोई दावा देखें, मेरा कोई दावा स्कॉलर का मेरे ख्याल से खामोश हो जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो आपने बात मौलवी का नहीं है। मैं तो आम एक अहमदी मुसलमान हूँ, जितनी समझ आती है इतनी बात कर देते हैं भाई। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब है मिंबर पर चढ़कर आपके मौलवी मोहम्मद सईद साहब ने जो बात की, आपको कख नहीं पता कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा है? नहीं कख मुझे नहीं पता, तो और हजारों लाखों हैं जो कख। तो इसका मतलब जबरदस्त। इसका मतलब है आप पैदाइशी अहमदी हैं, इसलिए अहमदियत तहकीक नहीं है। हम एक जमात भी है ना मेरे भाई, जमात भी है ना। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप पैदाइशी अहमदी हैं, इसलिए मेरे पर जिम्मेदारी नहीं है ना भाई कि मेरे पे वो मेरी जिम्मेदारी अपनी है, पर हम एक जमात भी हैं। अच्छा। तो इज्तिमाई मामलात भी हैं हमारे, कि हम काफिला चल रहे हैं, इज्तिमाई सोच है। तो टिकटॉक ठीक है नजीर भाई, तो टिकटॉक कब आप अनइंस्टॉल करके फोन फेंक रहे हैं? कब? ये इधर क्यों घूमते फिरते हैं आप जमात की तबलीग कर रहे हैं? ये सिर्फ एक सदा लगाते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं कि वाकई इमाम को आओ। नहीं, जब आप आवाज लगाते हैं, जब हम आ जाते हैं, आप कहते हैं मैं तो मजाक कीता सी, आई एम जोकिंग। उस वक्त आप कहते हैं हम जोकिंग। जो मस्जिद में मुअज्जिन होता है वो कोई क्या तमाम इल्म जानता है जो अजान देता है? जब मेरी मुअज्जिन से बात होगी तो और चीज है। जब मेरी एक अहमदी से बात होगी जो ये कहे कि हमारे पास इतनी तहकीक तो है कि मिंबर पर खड़ा होकर को मुरब्बी या मौलवी को बात कर रहा होगा, तो मैं उसको पकड़ लूंगा कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो बताएं ना भाई इस पर फिर आप मैं कह रहा हूँ जितनी मेरी समझ होती है उसके मुताबिक करते हैं ना मेरे भाई। तो बस ठीक है, बिलाली अजान देते हैं ना हम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूँ ना। बिलाली अजान देते हैं हम, आवाज सदाद लगाते हैं, लोगों को बुला रहे हैं, आप अल्लाह के घर की तरफ बुला रहे हैं, वक्त इमाम की पहचान के लिए बुला रहे हैं भाई। कुछ लोगों की इतनी ड्यूटी होती है, बस कुछ की ज्यादा। बस बात खत्म करते हैं। आप वो बिलाली अजान दे रहे हैं जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि फलसफा रह गया बाकी, तनकीदे गजाली न रही, और रस्म अजान रह गई बाकी, रूह बलाली न रही। तो आप वो वाली अजान देते हैं जो रस्म है, ये रूह बिलाली वाली। छोटी थी। अब नजीर भाई प्लीज आप लोग बात जारी रखिएगा, मैं इजाजत देने लगा हूं। काफी बात मैंने की और मैंने रखी, सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से बात की। जज़ाकल्लाह साहब, एक सवाल का जवाब देते जाइए जाते वो इम्तियाज साहब भी आ गए हैं, अपना अमरक भाई। जी जी जी, अच्छा जज़ाकल्लाह, जबरदस्त नजीर भाई, जज़ाकल्लाह। उनकी चार्जिंग वो बैटरी का मसला था, चले वो हो गया, अभी दुरुस्त बात करेंगे। असल में मैं थोड़ा सा बता दूं, दो चीजें हैं, जल्दी से गुजारिश कर देता हूं। नंबर एक तो बिलाल नजीर साहब, आपकी किसी ने वीडियो 1 साल पहले भेजी है, कोई अहीर नामी बंदा था, मैं अराइजन वान बात कर रहा हूँ, आईडी भी आपको नजर आ रही होगी। कोई अहीर नामी बंदा था, उसके साथ 1.5 घंटा आपने को बहस की थी, और आप एक जमात के बाकायदा जनाब डिफेंड करने के लिए सामने आए थे आलिम हज़रात बन के। पता नहीं वो शायद गलत होगी। दूसरा ये है कि भाई ब्रॉड को कोई मसला बन गया है, कोई भी कॉलर नीचे उतारा नहीं जा रहा हमसे, तो बराए मेहरबानी मॉडरेटर्स उठाएं उसी अहमदी को जो तमीज में बात करता हो, ये ना हो यहाँ को फटा पड़ जाए हमसे, भाई उतारे ही नहीं जा रहे, पता नहीं क्या मसला हो गया, उतारे नहीं जा रहे। सही बता रहा हूँ, ये खुद गए हैं भाई। हाँ जी हाँ जी, वो खुद जो जा रहा है वही आमिर भाई जा सकता है, बाकी कोई उतारे नहीं जा रहे, ब्रॉड हैंग हो गई है, तो इसलिए भाई थोड़ा ख्याल रखिएगा। जी कौन है जी, नेक्स्ट कौन है?
यार ना फिर मैं निकलता हूँ अहमदी, आपने उठा, मैं ये ना हो मैं फंस जाऊँ, फिर तगड़ा अहमदी आ गया तो मैं तो मारा नहीं जाऊंगा। आमिर भाई मसला हो गया है, वो यकीन करें नहीं उतारे नहीं जा रहे, कॉलर आता है, हम उठा सकते हैं, सिर्फ उतारा नहीं जा रहा हमसे, मसला बन गया। ठीक 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 ठीक। तो ये बात है, बहरहाल बड़ी उम्दा बात रही इनके साथ, नजीर भाई के साथ भी। ना सबसे डबल टैप करवाएं जो नीचे बंदे हैं यार, सारे एक बारी दो डबल दो टैप हाथ करें। मार दो। मसला डबल टैप भाई, डबल टैप जवानों, जुड़ के 1 मिनट लगा दें भाई, डबल टैप कर दें। ब्राड में कुछ हो गया है। दो बंदे और आगे लगे। ब्राड हैंग हो गई है। अली आप ना किसी को ऊपर नीचे करें, मैं कर लूंगा। उनको बात यार करने ये दें क्या हमारा। चल रहा है भाई? अमन नजीर साहब जरा थोड़ा को वेख के करिया जे, ये अहमदियां ने 2 चला लिया जी। 3 4 5 अहमदी आगे ने ते किसे नु थल्ले नहीं ला सकते असी, कोई मसला बन गया ब्राड नु भाई। डबल टैप अल्लाह खैर जी। कौन है नेक्स्ट? व्हाट्सएप में हले आए सी। कौन है? पंजवा अहमदी कौन है? 1 2 3 4 5 आहो, ठीक गल पे कर दो। हां 5 है आमिर भाई, 5 है ना? पंजवा ते गिल्ला तितर नहीं। सारे अहमदी हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अहमदी हैं। ऐसे अमर भाई ने गल बड़ी भी देखी, पंजवा गिला तितर वे इम्तियाज भी बोल पिया वो गिला नहीं, वो ते मैं मजाक च गल कीती है कि गिल्ला ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ। ठीक है जी। नहीं अगर बुरा मनाने के तो मैं उन्होंने नहीं बोलांगा, कोई मसला नहीं। गुरु साहब वेल लवो, फिर वेल लवो। हां गुरु साहब मुन्ना मेरे नाल लड़ाई ना करना। ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 1-2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਬਰਾਡ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਜੀ। जी अजीम भट्ट साहब, आज मौका बड़ा अच्छा है, ब्रॉड से उतारा भी नहीं जा रहा किसी से, तो कर लें जी बात आप। अजीम भट्ट साहब फौरन तो पहला चैलेंज दे दो सूरह फातिहा ते 74 दी असम्बली दा। जी। अच्छा देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे और भी अहमदी दोस्त यहाँ पे, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, और भी अहमदी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, और खासकर अहीर साहब भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है उनसे मैं एक सवाल करता हूँ, वो जवाब दे दें। अगर वो ना दे सके तो आप रकम दे दें। ये अल्लाह ताला को जो यानी कि कुरान में ये दलील बनाई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि बुत नहीं बोलते, अल्लाह बोलता है। अब ये आपकी दलील है अल्लाह भी नहीं बोलता, यानी कि इससे बड़ी बात जिसकी तनकीद की जा सकती क्या होगी? अल्लाह को गूंगा बना दिया, बुत के बराबर बना दिया, इसकी क्या दलील है आपके पास? अहीर साहब अगर आप बताएं तो मेहरबानी होगी, शुक्रिया। जी जनाब, अहीर साहब माइक म्यूट है आपका। अहीर साहब है, ये कौन है? ये अराइजन कौन है? ये क्या आइडिया? ये अहीर ऑफिशियल साहब जी जैतून वाले जो हैं अहीर साहब, उनसे दरखास्त की है, बताएं अल्लाह ताला को बुत बनाना, गूंगा बना देना, ये कहाँ से लिया? यार ये अजीम भट्ट साहब ने आके यकीन करें माहौल ठंडा कर दिया है। इम्तियाज भाई से अच्छी बात हुई, नज़ीर भाई से। अजीम भट्ट साहब ने, मुझे लग रहा है आके इनको अच्छा नहीं लग रहा कि अहमदी हजरात अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये बोरिंग करना चाह रहे हैं माहौल को। थड़कता फड़कता मौजू। अजीम भट्ट साहब, मैं सवाल पूछूं आपसे अजीम भट्ट साहब? यार हम तो आपके सवाल के जवाब देते ही रहते हैं। अब एक सवाल किया है, मुझे इसका जवाब दे दें, उसके बाद आप सवाल करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि हम तो आपके सवाल का जवाब देते रहते हैं, ये कशफ में आपने दिया है या रोया में? जी आपकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं, 3 घंटे चली हैं, 11,000 लोग गवाह हैं, एक भी खतबे नबूवत की आयत ना दे पाए, तो वो तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके बारे में बात दोबारा यहाँ पे क्या करना। अब मैंने सवाल किया है, मुझे बराए मेहरबानी जवाब दे दें। ये अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह आप लोगों ने बुत और गूंगा बनाया हुआ है, इसकी क्या दलील है आपके पास? अच्छा, आपने अभी बोला एक भी आयत नहीं दे पाए, आप पक्के हैं इस बात पर? एक भी आयत नहीं? जी 3 घंटे जो ट्विटर पर हुआ, यूट्यूब पर आपके पड़ा हुआ है, वो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहां से ढूंढ के मुझे बता दें कि मैं तो हाथ से जोड़ के आयत मांगता रहा आपसे। आपने मुझे बताना है, यहाँ पे ऐलान कर देना है कि भाई किस मिनट पर, किस सेकंड पर आप लोगों ने कोई आयत पेश की। ठीक है? ठीक है।
अच्छा मुझे ये बताइएगा, कुरान की आयत से मतलब क्या आपका, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जब आप ये कहते हैं कि एक भी आयत नहीं पेश की, तो आप बाइबल की आयत कह रहे होते हैं, गीता की या कुरान की? आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है जी अदनान साहब, आप बात करें इनसे, जो मैंने करना था कर दिया, ठीक है ना? बात करें, मैं वैसे क्या गाड़ी करना चला था रहा आपने? हूं। आज जो करना था कर दिया, शुक्रिया, मेहरबानी। अदनान साहब आप क्या बात करें। क्या नखरा करना था? क्या करना था? ये तो नखरा कर रहे हैं आप, मैंने जो करना था कर दिया। ये तो ऐसा लग रहा है मैं किसी खातून पायलट से बात कर रहा हूँ। छोड़े ना जाए आप नहीं समझेंगे। ओ भाई गल कर भैया थे 300 बंदा ऑन स्टेक है जी, आसमान पर झूल रहा है जी। आप करें बात, कोई मसला नहीं है, आप नहीं समझेंगे, प्लीज छोड़ें। मैंने कर दिया जो मैंने करना था। क्या करना था आपने? ठुमका लगाना था या नागिन डांस? अदनान साहब यहाँ क्या करेंगे? कमाल हो गया यार, दौड़ अपनी अपनी भाई। जी प्यारे अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कमाल हो गया भाई, हम नहीं किसी को उतार रहे। ब्रॉड इस वक्त बिल्कुल जो है वो अपने पीक पर पहुंची हुई है, हाँ जी, और ये बट सब खुद गए हैं, मैंने नहीं इनको उतारा। जी जनाब, क्या जनाब पे? अल्लाह का शुक्र, सवाल करके खुद निकल गए हैं। जी अदनान भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? खैरियत से अदनान भाई? लॉन्ग टाइम। आपने उनको जवाब नहीं दिया होगा तो तब निकल गए होंगे वो। चलें आपको दे देता हूँ जवाब, ठीक है? हाँ बताएं, कौन सी आयत बताई थी आपने उनको? हाँ जी, आयत किसे कहते हैं आप? क्या मतलब? कुरान करीम की आयत? कुरान की आयत कह रहे हैं ना? हाँ तो वो तो पेश की थी मैंने, सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 1 आयत पेश की थी। आप उसको फिर पहले क्यों भिजवाते रहते हैं? नहीं देखें, एक बंदा जब ये कहता है आपने 3 घंटे के अंदर आयत नहीं पेश की, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि वो आयत कहता किसे है, क्योंकि मैंने तो किया पेश। मिसाल के तौर पर मैं आपकी दावत करूं और उस दावत में आपको चावल खिलाऊं, कस्टर्ड खिलाऊं, खीर खिलाऊं, लस्सी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, कावा पिलाऊं, है जी, और उसके बाद एंड में जब बैठे तो आप कहीं यार सब कुछ खिलाए, मुझे चावल नहीं खिलाए, इसका मतलब है आपने चावल का कुछ और नाम रखा हुआ है, क्योंकि चावल तो मैंने खिलाए थे। अब वो कह रहे हैं जी आपने पूरे 3 घंटे के अंदर आयत नहीं दी, तो फिर मैं ही गलत हूँ ना कि मैंने पता नहीं आयत आपने क्या। फिर बताएं मुझे किस चीज को आयत कहते हैं, वो पेश करूं मैं, बताएं आप। क्योंकि मैंने सूरह फुरकान पेश की, सूरह आज़ाब पेश की। उसे पुलाव खिलाने का और उसको उबले हुए चावल खिला दें आप, तो वो तो फिर आपने वादा पूरा नहीं ना किया अपना। अगर मैंने ये देखें, ये बात होती है, मैंने चावल खिलाने का अगर वादा किया है तो वो उबले हुए हों, खिचड़ी हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, जर्दा हो, मतंजन हो, जी कुछ भी हो, या दलिया हो, कुछ भी हो चावलों का, वो मैंने चावल खिला दिए। अब मसला कहने का आपके नजदीक दलील में कुछ भी पेश कर दिया जाए, अगले को उस पर काउंटर क्वेश्चनिंग या उसको हतमी समझकर कबूल कर लेना चाहिए कि भाई हाँ जी बड़ी मजबूत दलील दे दी है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक था मौजू के साथ, मजमून के साथ जो बहस चल रही थी, बिल्कुल सही फाइनल होगी बात। यही बात आप कहते हैं कोई भी आयत पढ़ दिया जाए किसी भी मजमून के ऊपर, किसी भी मौजू के ऊपर, किसी भी बहस के ऊपर, और अगला ये तस्लीम कर ले हाँ भाई ठीक है आपने बिल्कुल जो बहस चल रही थी, जो मामला था, जो दावा था, उसके मुताबिक आयत पेश किया। ये कहना चाहते हैं आप? अदनान भाई कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, और कितनी ही गलत बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कुरान नहीं पेश किया, मैंने कहा मैंने कुरान पेश किया, आप कह रहे हैं कि आपने कुरान नहीं पेश किया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप कुरान नाम किसका रखते हैं? अगर तो आप कहें कि कुरान आप रूहानी खजाइन का नाम रखते हैं तो वो भी मैंने पेश की। अगर आप कहें कि आयत हम रूहानी खजाइन के किसी सेंटेंस का नाम समझते हैं तो वो भी मैंने पेश की। अगर आप कहें कि कुरान हम उस चीज को समझते हैं जो आकाए दो जहां मोहम्मद व अहमद फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ, वो भी मैंने पेश किया। सूरह फुरकान पेश की, सूरह अल अहज़ाब पेश की। अब वो कहते हैं कोई आयत नहीं पेश की। अब मुझे बताएं अदनान भाई, अजीम भट्ट साहब का हाल एक ऐसी औरत का हो कि जिसके अंदर से 10 से 12 बच्चे मैं निकाल चुका हूं और वो एंड में कहे मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो अदनान भाई इसका हल मैं क्या करूं? ठीक है, तो अदनान भाई बराए करम आप उनकी बातों में ना आए, मेरा उनके साथ पुराना संबंध है, ठीक है, बड़ा पवित्र किस्म का, बड़ा गुप्त किस्म का संबंध है। आप प्लीज इसके अंदर अपना प्रबंध ना कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप ही मुझसे पूछ लें, मैं कोई आयत दे दूं फिर अदनान भाई? ये किस मौजू पे? कमाल हो गया। तो ये अजीम भट्ट साहब जब बात कर रहे थे सुकत नहीं आपको पता चला किस मौजू पे? वो तो किसी बहस का होगा, यूट्यूब पर कुछ हुई है आपकी बात। हाँ तो वही ना, आप जब सुन के आपने कहा कि आपने दी कोई आयत नहीं होगी उनको, तो भाई मैं तो कह रहा हूं मैंने दी। खत्मे नबूवत के मौजू पर वो कह रहे थे आयत आपने पेश नहीं की। ठीक है, मुझे पेश करते हैं फिर, कौन सी पेश की थी आपने? जी पेश कर दूं जी? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सूरह अल फुरकान है, सूरत नंबर है 25।
ٹھیک ہے عدنان بھائی؟ جی 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 بول رہے ہیں, ترجمہ بتا دیں کیا ہے. جی ترجمہ بتا دوں؟ آپ پڑھ دیں جو آپ کو بات مناسب لگتی ہے, جیسے آپ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر, لیکون تاکہ وہ ہو جائے للعالمین تمام زمانوں اور جہانوں کے لیے نذیرا ڈرانے والا. ٹھیک ہے جی, تمام جہانوں کے لیے جی جی نذیرا ڈرانے والا. اب میرا استدلال اس سے یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں تو کسی اور نذیر کی ضرورت ہی نہیں, لہذا آپ پر نظارت ہو, ٹھیک ہے, یا آپ پر بشارت ہو, یا آپ پر نبوت ہو, یا آپ پر رسالت ہو, اس کا اختتام ہو گیا. یہ میری دلیل ہے. جی سر, اب آپ کو اس دلیل کو توڑنے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے نہیں, تمام وقتوں کے لیے نہیں, تب آپ میری اس دلیل کو توڑ پائیں گے, ادروائز نہیں. جی سر, بہت شکریہ. نہیں محترم, آپ کے کہنے کے مطابق تو دلیل نہیں توڑے گی نا, میں تو اپنے آرگومنٹ دینے ہیں, آپ تو نہیں مجھے دلیل توڑنے کے لیے آپ کو میرے استدلال کے مطابق ہی توڑنا ہوگا نا. توڑے, میرا استدلال سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ ہاں, آپ نے کہا کہ جب کوئی نبی کسی تمام امت یا تمام جہانوں کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تو بالکل قرآن کے مخالف آپ نے بات کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تمام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے, ان کی تعلیم بھی ان کے بنی اسرائیل کے لیے مکمل تھی, لیکن پھر بھی پے در پے ان میں بنی اسرائیل میں جو ہے نبی آئے. تو یہ تو آپ کی بالکل دلیل یعنی کہ بہت اتنی ناقص ہے کہ وہ دھاگے کی طرح نازک ہے, وہ آرام سے ٹوٹ گیا. اس میں کوئی دشواری والی بات ہی نہیں ہے. اس میں آپ کا کیا کہنا مزید؟ ٹھیک, زبردست. یعنی آپ تمام جہانوں اور تمام بنی اسرائیل کو ایک طرح سمجھتے ہیں. ہاں, کیوں بنی اسرائیل میں آتے تھے؟ کیونکہ قوم بگڑ جاتی تھی. تمام جہان کا ایک دفعہ تعلیم پوری آ جائے تو بگڑنے کا اس میں سے مادہ ختم ہو جاتا ہے. بگڑنے کا مادہ تو انسان میں رہتا ہے اور وہ ازل تک قیامت تک رہے گا. تو یہ آپ جو ضرورت کو نہیں جب ختم کر سکتے تو نبی کو نہیں آپ ختم کر سکتے. تو یہ میرا خیال ہے آپ کی دل کی تسلی والی دلیل تھی آپ کی, اس میں کوئی ایسی جان نہیں تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب امت بگڑتی ہے تو نبی ہی آنا چاہیے, نبی کے علاوہ کوئی امت بگڑے تو ٹھیک نہیں کر سکتا. نبی کے اصولی بات یہ کہ ایک استدلال کے لیے میں کلیئر کر دیتا ہوں, میں کلیئر کرتا ہوں. میرا استدلال تھا, غور سے دوبارہ فرق آپ نے سمجھا, میرا استدلال تھا کہ چونکہ پچھلے انبیاء رسول اپنے اپنے علاقے قوم وقت کے لیے آتے تھے, اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں, لہذا اب آپ کے بعد کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس استدلال کو یوں توڑا, پہلے ہی کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے تو ان کے بعد تو آئے. جب میں نے آپ سے پوچھا کہ تمام بنی اسرائیل تمام جہانوں میں فرق ہے تو آپ نے ایک استدلال رکھا کہ کیا قومیں بگڑتی نہیں ہیں. میں اس سے یہ چیز سمجھاؤں کہ آپ کے نزدیک نبی آنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے, یا اس لیے نبی کو آنا چاہیے, یا نبی ہی کو آنا چاہیے. دو تین صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہو سکتی الگ. نبی آنا چاہیے جب بھی کوئی امت بگڑے. کیا آپ یہ پیش کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. قوم کے بگاڑ کی نوعیت دیکھنی پڑے گی. اگر نوعیت ایسی ہے کہ میجورٹی آف لوگ بگڑ چکے ہیں, پہلی بات تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کب نبی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قوم کے بگاڑ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل کیسے ہونا ہے. مجدد پہ ایمان لانا کسی پہ ایسا لازم نہیں ہوتا, نہ وہ کسی پہ ایسا حجت بنتا ہے. تو ایسی صورتحال میں قوم کا بگاڑ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایک نبی کا آنا لازم ہو جاتا ہے, اور وہی ان مسائل کا حل کرتا ہے, کیونکہ وہی حتمی بات اللہ سے خبر پا کر لوگوں کو دیتا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے خبر دے کے دے وہی حکم اور عدل ہوتا ہے. اور جب حکم اور عدل کی ضرورت ہے تو حکم اور عدل کا آنا بھی ضروری رہتا ہے. اب بات کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جو پہلا نقطہ رکھا جس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی مرضی جب وہ بھیجے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بگڑی ہو, میجورٹی قوم بگڑ چکی ہو, انسانیت میجورٹی تباہ ہو, اگر اللہ نہ چاہے تو ایسا ممکن ہے کہ وہ نہ بھیجے. ایسا ہو سکتا ہے نا, یا نہیں؟ آپ کی نظر کے اندر دونوں میں سے کون سی شرط پہلے لگے گی؟ یعنی زیادہ امپورٹنٹ شرط کون سی ہے کہ تمام کی تمام انسانیت یا میجورٹی انسانیت بگڑے گی تو اللہ مجبور ہو جائے گا کہ ایک نبی کو بھیجے, یا اللہ کی مرضی ہے کہ سارے کے سارے بگڑ جائیں اور وہ نہ چاہے تو نہ بھیجے؟ دونوں میں سے کس چیز کو مانتے ہیں؟ جی اللہ کا مرضی تو ہمیشہ ہر چیز میں اپنا مقام بالا تر رکھتی ہے نا. اب کب قوم کا بگڑنا لازم, ہمیں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کب میجورٹی آف قوم بگڑ گئی ہے اور کب نبی کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا کہ کب قوم
मेजोरिटी जो है बिगड़ चुकी हुई है। अब इनका मसला जो हल है करना है वो नबी के बगैर इनका मसला हल होने वाला नहीं है। उस वक्त जो है हकल आ जाता है, और इसकी इशारा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दे चुके हैं कि इस उम्मत ने बिगड़ जाना है और इसकी ज़रूरत भी एक हुक्म और अदल आकर पूरी करेगा। तो हर लिहाज से हदीस की रोशनी में भी और कुरान की रोशनी में भी आपने जो दलील दी थी वो बहुत कमज़ोर थी। आप बात कीजिए। जी, कमजोर तो तब होती जब आपका रद्द किसी पाया सबूत पर पहुंचता, मंतकी और अकली तौर पर या शरई तौर पर ठीक बैठता। अब मसला ये है कि आपका अभी तक ये मसला नहीं हल हो रहा कि अल्लाह के लिए जरूरी है कि जब भी कोई कौम बिगड़ जाए तो वो नबी भेज के ही उन मसले को हल करेगा, तब आपकी दलील मजबूत होती। मिसाल के तौर पर दोबारा समझें, मेरा इस्तदलाल ये है, अल्लाह ने चूंकि तमाम जहानों के लिए नज़ीर भेजा, अब किसी भी रसूल और नबी की जरूरत या रिसालत और नबूवत की जरूरत बाकी नहीं रही। ये याद रखना आपने, ठीक है, क्योंकि वो तमाम जहानों के लिए भेजे। अब किसी नबूवत और किसी रिसालत की जरूरत बाकी नहीं रही। ये है मेरा मुकदमा। अब आप ये पेश कर रहे हैं कि कौमें बिगड़ती रहेंगी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, कौमें बिगड़ती रहेंगी, मगर आपका यह कहना कि कौमें बिगड़ती रहेंगी क्या ये नतीजा निकालता है कि जब भी कौम बिगड़ती है उसकी इस्लाह के लिए नबी ही आता है, नबी के अलावा कोई नहीं आ सकता? या नबूवत और रिसालत ही बिगड़ी हुई कौमों को ठीक कर सकती है? नहीं, जो बाद में आएगी। नबूवत और रिसालत जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना? ये आपने मुझे बताना है, ये अभी तक आप बता नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर आपको पता है, जैसे ही आप ये कहेंगे कि मेजॉरिटी बिगड़ गई इसलिए नबी आते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि 13 सदियों तक उम्मत मेजॉरिटी तौर पर बिगड़ी नहीं, क्योंकि ये मसला आपके सामने आता, लिहाजा आपने ये शर्त लगा दी अल्लाह जब चाहे भेजे, क्योंकि आपको पता था कि फिर लोग पूछेंगे कि दोनों शर्तों में से एक चीज करो। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपकी नजर में कौन सी शर्त प्रायोरिटी है, अल्लाह की मर्जी या कौमों का बिगड़ जाना अल्लाह को मजबूर करता है कि वो नबी भेजे? अगर आप ये कहें कि नहीं, कौमों का बिगड़ जाना कोई शर्त नहीं है, अल्लाह की मर्जी, तो इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि कौमों के बिगड़ने के बावजूद नबी ना भेजना यह अल्लाह का इख्तियार है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि कौमें बिगड़ती रहें और तमाम जहानों का नज़ीर आ जाए, ये काफी है, बजाय इसके कि कोई और नज़ीर आए। यही बात की तस्दीक मिर्जा साहब ने की है रूहानी खजाइन की 6 की 355 शहादतुल कुरान में। नबी तो इस उम्मत में आने को रहे। मिर्जा साहब साफ तौर पर बता रहे हैं कि उम्मत कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए, इस उम्मत में नबी तो नहीं आने, रूहानी खुलाफा आएंगे, नबी नहीं आएंगे इस उम्मत के अंदर। इससे पता चला कि उम्मतों का बिगड़ जाना जरूरी बात नहीं है कि आप नबी या रसूल आए, ठीक है। मादर चाहते बात लंबी हो गई नान भाई, मेरी दलील को तोड़ने के लिए, कमजोर साबित करने के लिए मेरे मुकदमे पर जरा करनी जरूरी है, जो आप नहीं कर पा रहे। जज़ाकल्लाह। खैर बहरहाल, मैं चूंकि काफी देर से बैठा हूं, मैंने अपनी राय रख दी है, मगर अदनान भाई इस मेरी बात के ऊपर आप प्लीज अपनी बात रख दे, ताकि आपके साथ ज्यादती ना हो और आप ये ना कहें कि इसने अपनी बात कर लिया, मुझे मौका नहीं दिया, फिर मैं इजाजत लूंगा, ठीक है जी। अदनान भाई प्लीज बात कर लें। जी मोहतरम, मैं भी बिजी हूँ थोड़ा सा, तो मैं भी नहीं बात नहीं कर सकूंगा। पहली बात तो अपने अपनी दलील के ऊपर कोई मंतकी उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, आपने बस एक आयत पढ़ दी, तमाम जहानों के लिए नबी हैं, आगे क्यों नबी नहीं आएंगे, क्या वजह है, क्या कौमें नहीं बिगड़ेंगी, क्या जरूरत खत्म हो जाएगी, ये सारे आर्गूमेंट्स आगे आपने दिए ही नहीं है। बनी इसराइल, ये तो कोई भी कह दे, इसराइल वाला झूठी कह दे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए थे नबी, तमाम बनी इसराइल के लिए थे, अब बनी इसराइल को किसी नबी की जरूरत नहीं है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट कोई भी शख्स किसी भी वक्त दे सकता है, बैठे बैठाई भी दे सकता है। पहले नबी को मान के भी इंसान कह सकता है कि वो पहला नबी आ गया था, तो उसके बाद किसी नबी आने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी मंतकी हुज्जत किसी शख्स पे कायम नहीं करता जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया है। तो और बाकी मिर्जा साहब की, आप मिर्जा साहब को एक जगह नबी कहते हैं, फिर उनकी बात आयात भी पेश करते हैं, आपके मिर्जा साहब की रूहानी खजाइन में ये लिखा हुआ है, फलानी बात लिखी हुई है। जब आप खुद उनको नबी तस्लीम करते हैं कि उनका दावा नबूवत है, तो यकीनी तौर पर उस दावा नबूवत को समझना पड़ेगा किस नौयत का है। हम तमाम जहानों से ये मुराद लेते हैं कि इस उम्मत से बाहर कोई नबी नहीं आ सकता। तमाम जहानों से सिर्फ ये नतीजा निकलता है कि अब उम्मती के अलावा कोई और नबी नहीं बन सकता। लेकिन यह कह देना कि किसी नबी की जरूरत नहीं रहती, और सामने आप देख रहे होंगे कौम फिरके बढ़ चुकी है, तो टूट फूट चुकी है, और हर तरह की जरूरत मौजूद है। नबी पाक सल्लम की बशारतें भी मौजूद है, और वो भी मौजूद है, वईद भी मौजूद है कि भाई इस कौम ने बिगड़ भी जाना है, अंजार भी मौजूद है, और जो इस कौम में हकम और अदल ने भी आना है। तो इन सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि यकीनी तौर पर किसी न किसी अल्लाह की तरफ से यकीनन आप जाना है, उसको आप नबी का नाम दे दें, मुजद्दिद का नाम दे दें, ऐसा शख्स जरूर आएगा जिस पर ईमान लाना लाजिम होगा, और हमारे मुताबिक वो आ चुका है। आपने जो दी थी, आप उसके आगे आपने सिर्फ आयत पढ़ दी थी, आगे उससे कोई मंतकी आपने दलाइल या उसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स में कोई बात ऐसी नहीं रखी थी जिसको कोई तोड़ा जाता, क्योंकि वो बात ही नामुकम्मल है। ऐसी आर्गूमेंट देना ही अब बहैसियत वही नाकिस है, तो उसके आगे बंदा क्या तोड़। वैसे मैंने आर्गूमेंट दे के आपको तोड़ भी दिया है कि जब बनी इसराइल में नबी जारी आ सकते हैं, बनी इसराइल में तमाम तालीम मुकम्मल होने के बावजूद भी, तो तमाम नबियों के, तमाम उम्मतों में भी अब नबी आ सकता है, और उसके भी आगे दलाइल मौजूद है। चले ठीक है, मैं भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, आई एम एग्री।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, मिठाई भी डब्बा खोलना है मिठाई का। अच्छा जी, चूंकि अदनान भाई ने अपनी बात रखी तो मुझे हक है मैं भी अपनी बात रखूं, और मैंने आखिरी बात कह कर इसलिए रखा था ताकि अदनान भाई खुल के उस पर जरा करें, इनको यही लगे कि बात खत्म होने लगी है, मगर मैं अभी रिलैक्स हूँ, वार्म अप हुआ हूँ। अच्छा जी देखिए, अदनान भाई चले गए हैं, ओ पे आज का राशिद साहब हूँ तुसी नहीं जे जाना, हूँ मैं डब्बा थोड़े को खुलवाना जे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, बात आगे रखते हैं। सवाल ये है कि इन्होंने कहा, अभी जुमला क्या बोला था इन्होंने, पता है अदनान भाई ने जुमला क्या बोला था? अदनान भाई ने कहा ये कैसे मुमकिन है, इतने फिरके बन रहे हों, इतने फितने फैले हों, और आप कहें कि अल्लाह ने किसी को भेजा ही नहीं। इसका मतलब है कि मैंने इसलिए कहा था कि दोनों में से एक चीज चूज करें। मुझे बड़ा ना करें, मैं तो कोई बात कर ही नहीं रहा, मुझे छोटा कर दें। इन्होंने मेरे इत्थे थले कर दो, मेरे थले इधर सिर कर दो, इधर थले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माइक म्यूट रखें भाई प्लीज, आपकी मेहरबानी यार। आपको उन्होंने बड़ा इसलिए किया था कि आप बराबरी की सतह पर आकर बात करें। अगर राशिद साहब आप बात नहीं करना चाहते, माजरत चाहते हैं, खैर मुझे तबसरा करने दें, आप प्लीज माइक म्यूट रखिएगा प्लीज भाई, थैंक यू। वो जो अदनान साहब हैं वो ये, इसका मतलब है दो चीजों में से एक चीज है, या ये चीज है कि अल्लाह ताला अपनी सवाबदीद अपने इख्तियार पर भेजता है, या ये चीज है कि कौमें बिगड़ती हैं और उनके बिगड़ते हालात अल्लाह ताला की मशीयत और मसलहत को मजबूर करते हैं नाउज़ बिल्लाह कि वो एक नबी भेजे। उसके बगैर चारा नहीं होता कि किसी मुआशरे की इस्लाह हो सके। दोनों में से एक चीज चूज करें। आपको पता था। अब आपने देखें, जब मैंने कहा कि अल्लाह की स्वाबदीद, इन्होंने कहा जी अल्लाह की स्वाबदीद, पहले आखिरी आर्गुमेंट क्या पेश किया, ये जी फिरके बन रहे हैं, दुनिया तबाह हो गई, सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं और अल्लाह किसी को। इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि आपको तो ये समझ आ रहा है कि इस वक्त नबी की जरूरत है, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को नहीं पता। पता है क्यों? मिर्जा साहब के जाने के बाद दुनिया के हालात उससे ज्यादा बदतर हो रहे हैं अखलाकी पस्तगी के हवाले से। तो आपके फार्मूला के मुताबिक तो रसूल और नबी तो आप आना चाहिए, आपके फार्मूला, हमारे नहीं, आपके, क्योंकि आप मजबूर करते हो हालात की बुनियाद पर। हालात तो आज ज्यादा तकादा कर रहे हैं। फिर आपने कहा फिरके, ये 17 के 265 तोहफा गोल्ड, मिर्जा साहब कहते हैं 1200 बरस में तो 73 फिरके इस्लाम के हो गए थे। अब आप मुझे बताएं इन 1200 बरस के अंदर कितने को नबी और रसूल आए हैं उन फिरकों? इतना खून खराबा खुद आप लोग हमें बता रहे होते हो, आपकी तारीख में ये हुआ, मुसलमानों ने ये कर दिया, आपस में लड़ते रहे, फलाना किया, शिया सुन्नी ये करते रहे, फलाना करते, खुद बोलते हैं ना। तो बताओ कितने नबी आए जिनको आप मानते हो कि वो नबी हों, रसूल हों? बताओ, नहीं मानते हैं। इसका मतलब है आपने सिर्फ एक बंदे को इस खिड़की से घुसाने की नाकाम कोशिश की है। उनका नाम है सिलसिला अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आजहानी। ये मिर्जा साहब हैं जिनको आप चाहते हो कि हम किसी तरीके से मान लें, उसके अलावा तो आप किसी को पेश ही नहीं कर सकते। तो दूसरे लफ्जों में, अच्छा फिर आगे अदीम भट्ट साहब ने बात उठाई कि नाउज़ बिल्लाह आप ये मानते हो कि अल्लाह बात नहीं कर सकता। फिर 13 सदियों तक तो आप भी यही मानते हो, क्योंकि आपके नजदीक अगर आप कहो कि नहीं जी 13 सदियों तक बात होती रही, तो फिर बात होती रही तो वो तो नबी और रसूल नहीं हुए। इसका मतलब है नबी और रसूल भेजे बगैर भी अल्लाह कलाम करता है। हाँ, तो इसका मतलब है बात होती रही। तो आपका यह कहना कि चूंकि आप ये मानते हो कि नबूवत खत्म हो गई है तो नाउज़ बिल्लाह कोई नबी नहीं आ सकता, या नबूवत जारी, रसालत जारी नहीं, तो इसका मतलब है नाउज़ बिल्लाह आप अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह गूंगा मानते हैं, या ये कि वो बात नहीं कर सकता। जो कि मिर्जा साहब ने भी कहा, अल्लाह माफ करे, गुस्ताखी की कि उसकी जुबान पर कोई मर्ज लायक हो चुका हुआ है, नाउज़ बिल्लाह। तो क्या आप मानते हैं 13 सदियों के अंदर कोई रसूल और नबी आया, नबूवत और रसालत जारी थी ना जी, तो कोई आया नहीं? तो क्या मानोगे अल्लाह उस वक्त ये था? नहीं मानते। तो इसका मतलब है आप भी ये चीज मानते हो कि नबूवत और रिसालत किसी को अता किए बगैर, नबी और रसूल का रुतबा किसी को अता किए बगैर अल्लाह कलाम कर सकता है। तो फिर हम पर ये कैसा राशिद राणा साहब कितने गए ने? राशिद राणा साहब की गल है वो बर्फी का पेड़ा खाने वास्ते आए सन, निकल गए ने जी। मैं ही सिर्फ बच गया हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। चले, आप तो पानी हैं, आप तो अपने भाई हैं प्यारे, कोई मसला नहीं। ये वाटर भाई, बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी सर। मैं तो ऊपर इसलिए आया था कि मुझे आज तक कभी इस ब्रॉड पे ना मेरे कमेंट्स ब्लॉक किए गए हैं, ना ब्लॉक किया गया है, बदतरीन लड़ाई और दुश्मनी के बावजूद। लेकिन जब से आमिर हक भाई और अहीर भाई आए हैं और बेताशा मॉडरेटर बने हैं, तो सांस लेने के लिए भी आपकी ब्रॉड पे आए तो आप लोग ब्लॉक कर देते हैं। क्या वजह है ये? आपको स्टेज पे पता किसने उठाया? मैं सर ऊपर तशरीफ ही इसलिए लाया हूँ कि मैं गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे कमेंट्स आप ये कह रहे हो कि फलां फलां फलां। वैसे तो मैं सफाई किसी को नहीं देता होता, ठीक है, क्योंकि किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सदके मामला चल रहे हैं। तो फिर भी मैं बता दूं आपको, सिर्फ इतना बताने के लिए, आपको पता है कि आपको पता है कि स्टेज पे किसने उठाया आपको? और मुझे इससे क्या, मुझे तो ब्लॉक करने वाले से कि भाई आपको किससे क्या? तो आप मेरे इस तरह तो ना करें, फिर आप मैंगो चौसा समझ के तो ना चूपी जाएं।
फायदा भी तो पता तो चले ना आपको, मैंगो दिया किसने है। आप यम यम तो कर रहे हैं मैंगो चूस के, मगर आपको ये नहीं पता कि ये मैंगो आपको पकड़ाया किसने है। मैंने ही आपको स्टेज पे उठाया, ठीक है जी प्यारे भाई। नंबर 1। दूसरा ये, मुझे किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मुझे गालियां दे रहा होता है उन्होंने मैं उनको खुला छड़ देना वहां, ठीक है ना। माशाल्लाह जी। अब वापस आ जाते हैं भाई, किसी ने इनको ब्लॉक नहीं किया। आमिर भाई, ये मैंगो चूसते जरूर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। साथ शोर करते हैं ये लंगड़ा। अब्दुल्ला भाई एक सेकंड, हम कब से बता रहे हैं और कमेंट हमारे ये जुल्फकार भाई रिपीट भी कर रहे हैं कि ब्रॉड को मसला बन गया है। अभी भी शायद मेरी आईडी पता नहीं किसी और नाम से नजर आ रही है या अब मेरा नाम आ गया है, कोई पता नहीं है। यहाँ हमारे अपने मुसलमान सारे कॉल से नीचे गिर गए हैं। ब्रॉड को अचानक ही पता नहीं क्या हुआ है कि जो ना वो हैंकी पैंकी हो गई है, 6-7 अहमदी ऊपर आ गए हैं, ना किसी को हम उतार पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो वाटर साहब, कन्नों में भी आपने को गाढ़ा वाटर लिया हुआ था, आपको सुनी नहीं ये बात? जी मैं तो आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा ना। इन्हों फर्क कराओ जी, ये अपना चलो हो गया। अगर आपका शिकायतें कोई इल्मी बात करनी, सवाल पूछने आया था। अब मेरा कमेंट मेरा बंद कर दिया, मुझे जी बोलने का मौका नहीं दिया। वो वैसे कौन सा आपने साइन थीटा ते कॉस थीटा समझाना सी हैं? आपने कौन सा इधर E = mc² थी हल करनी सी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझानी सी? इतनी अच्छी आपने मुकालमा की है तो उसके आखिरी 2 पॉइंट तो आपने जमात अहमदिया के हक में दे दिए हैं। हाँ, कि कुफर कर रही है। नहीं, आपने कहा है जी कि अल्लाह ताला जो है वो 1200 साल से मुसलमानों से और अपनी इंसानियत से मुकालमा कर रहा है नबी होने के बावजूद। जी जी जी, ये मुकालमा कर रहा है कि मैंने मिर्जा साहब को नहीं भेजा। हाँ, तो आपने तो ये जमात अहमदिया के हक में कह दिया है। हमारी तो ये दलील है कि अल्लाह ताला की वही जारी है। मेरी नजर में अब्दुल हकीम पटियालवी साहब के दिल में, अब्दुल हकीम पटियालवी साहब के दिल में ये बात अल्लाह ने डाली थी कि कह दो कि ये फलां तारीख तक जो है फौत हो जाएगा। मेरी नजर में तो अब्दुल हकीम पटियालवी साहब के दिल में यही, पटियालवी साहब का तो जिक्र हुआ ही नहीं आपके मुकालमे में। मैं तो आपके आखिरी 2 कमेंट्स की बात कर रहा हूं। ये तो जिक्र हुआ ना कि आपने ये फरमाया, ये तो जिक्र हुआ ना, ये तो जिक्र हुआ ना कर रहा है। ओ भाई वाटर भाई, देखें प्यारे भाई, ये जिक्र तो हुआ है ना कि अल्लाह ताला अपनी उम्मत से अपने इंसानों से मुकालमा करता है, ये जिक्र तो हुआ है। तो उसमें अब्दुल हकीम साहब भी तो आते हैं ना। या तो आप इनकार कर दें कि अब्दुल हकीम साहब से बात नहीं की थी, तो मैं बता देता हूँ कितनी सच हुई है बात। नहीं, मैं अल्लाह से मुकालमे का मजमून आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि अल्लाह से मुकालमा जारी है आपके मुताबिक कि नहीं जारी? जी जी जी, बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब अल्लाह से मुकालमा जारी है तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा ये है कि मिर्जा साहब से नहीं जारी। अच्छा, मिर्जा साहब से नहीं जारी और बाकी इंसान ऐसे मौजूद हैं जिनसे अल्लाह का मुकालमा जारी है। अब हम ऐसे करते हैं, 100 बातों की एक बात, मिर्जा साहब से मुकालमा जारी है, इसकी सदाकत पे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। राजी हैं? इधर उधर जाते ही नहीं। आप इंसान से मुकालमे की तो बात करें ना, मिर्जा साहब तो बाद में आते हैं। तो आप पहले इसका मतलब है आप मिर्जा साहब को इंसान नहीं समझते, ये कह रहे हैं? जो आपने स्टेटमेंट दी है कि अल्लाह ताला का इंसानों से मुकालमा जारी है, आप इस पर कायम है? मैंने तो ये भी स्टेटमेंट दी है मुकम्मल के इंसानों से जारी है, मिर्जा साहब से जारी नहीं है। और आप मानते हैं मिर्जा साहब को, तो क्यों ना मिर्जा साहब की सदाकत पे बात शुरू करें। जरा मैं हवाला पूछना चाह रहा हूँ आपसे कुछ। जी जी पूछें। बिल्कुल जी। मिर्जा साहब अल्लाह से मुकालमा करते थे? अल्लाह मिर्जा साहब से मुकालमा करता था, यानी मिर्जा साहब नहीं करते थे? तो वही अल्लाह की तरफ से आती है कि मिर्जा साहब की तरफ से जाती है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि मिर्जा साहब भी 2 वे कनेक्शन लिया हुआ था उन्होंने। इंसान दुआ करता है और अल्लाह वही भेजता है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। इंसान दुआ करता है। तो आप गुफ्तगू करने के लिए तैयार है? मुझे 5-1 मिनट देंगे जिसमें मैं थोड़ा सा एक अपना काम करके, क्योंकि मैं निकलने वाला था, तो एक काम करके फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिर्जा साहब से मुकालमा होता था कि नहीं। जी, अभी 5 मिनट बाद आ जाता हूं। नहीं, रुके। ये ऐसे करते हैं, मैं टॉपिक दे जाता हूं ताकि जो है ना वो डिले ना हो। मैं दे सकता हूँ जी टॉपिक? जी खुशी से दे सकते। जी जनाब, ये टॉपिक देने लगा हूं जी। अल्लाह ताला जो है वो मिर्जा साहब से कलाम करते थे, ठीक है ना जी। तो ये एक किधर गया, ये एक खत है जिसमें मिर्जा साहब ने अपने ऊपर हुए इल्हाम के हवाले से बात करते हुए कहा अब्बास शाह साहब को, मीर अब्बास साहब को, कि ये मेरे ऊपर इल्हाम आया है, मगर मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि इस इल्हाम के अल्फाज के मानी मुझे नहीं पता, मुझे पता करके बताएं कि इसका मतलब क्या है। पूछना यह था कि क्या कुरान से यह साबित कर सकते हैं कि अल्लाह अपने नबी पर इल्हाम करे या वही करे ऐसी जुबान के अंदर जो जुबान उसकी ना हो, ठीक है, या जिस जुबान को वो समझता ना हो। अगर आपके बकौल अल्लाह ताला मिर्जा साहब से मुकालमा कर रहे थे
تو قرآن کے اصول کے مطابق مرزا صاحب کو ایسی زبان میں الہام آنا چاہیے تھا جو ان کی اپنی زبان ہوتی یا ان کی قوم کی زبان ہوتی. ٹھیک ہے جی, یہ موضوع ہے. امن نذیر صاحب آپ ہیں, میں چونکہ مجھے تھوڑا سا وے ہوں گا, یہ ہم رکھ لیتے ہیں ایک سمجھیں کہ سینٹر ڈسکشن کا پوائنٹ, جس میں آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے واٹر بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی 5 منٹ بعد آتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ایسا کر لیتے ہیں, میں اوے ہو رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, زندہ باد. چلیں جی, دیکھ لیا جائے پلیز دیگر بھائی جو آئے ہیں, میں ذرا اوے ہو رہا ہوں بھائی. کون بھائی ہیں؟ نجب بھائی ہیں. نجب بھائی وہ چلے گئے ہیں سر, وہ دیکھیں ان کو 5 منٹ جو مانگا نا ٹائم, ان کو بس ایک کھڑکی چاہیے تھی جہاں سے انہوں نے جانا تھا. جی جی, مجھے نا اصل میں ایک دو